तद्भक्ताय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, we are continuing our Bhakti Vaibhava study of third canto Srimad Bhagvatam, chapter 9, the prayers by Lord Brahma for the creative impetus, and we are in a first section, first 5 verses of the prayers which glorify the form of Garbhodakshaya Vishnu. From the first verse which we have discussed, there is a one question in your question bank which says, describe the analogy of crows and white ducks. Swans, that is white ducks. Prabhupada has written white ducks, therefore they have used the same words. So this is the analogy from first verse which is in your question bank. Those who want to enjoy the beauty of material world even up to heaven are the crows, and those who relish the beauty of transcendental form of the Lord which is beyond 3 modes of material nature and who associate with devotees, they are the swans. White says clear lakes, which means transcendental. White says surrounded by arches means the association of devotees. It means they have an association of devotee. So verse number 2. Rupam yad etad avabodha rasa uddayena. Sashvan nivartah tamasya sad anugrahaya. Adau grihitam avatara satayka bijam. Yannabhipadam bhavanada aham avirasam. Now in this words, how many words you know? Try to understand. In your own language, how many words you know? Rupam, you know Rupam? Etad, yad, etad, avabodh. Avabodh. Bodh, avabodh. Avabodh means? What is written there? Avabodh rasa. Avabodh rasa udyayana. Avabodh rasa is internal energy, Prabhupada writes, internal energy. And then Udyayana with manifestation.
शाश्वत निवर्त तमस्सा. शाश्वत means eternal. Nivarta tamasa means beyond three modes of material nature. And sad anugraha, sad? Satpurusha is good word. So what sat means? Sat means devotee. Yes. Satam prasangam, that is the sat. So it is the sat anugraha. Anugraha means mercy. आदौ गृहीत अवतार शतैकम. इसमें कितने शब्द समझ में आते हैं? आदौ इन द बिगनिंग, गृहीतम एक्सेप्ट, अवतार शतैकम hundreds of incarnation. यन्नाभि पदम भवदा अहम आविर्षाम. इसका अर्थ भी सबको आता है, जिसकी नाभि से मैं कमल के ऊपर पैदा हुआ. समझ में आ रहा है ना? अब देखिए ट्रांसलेशन. From the form which I see is eternally free from material contamination. अब देखिए लाइन को. The form which I see is eternally शाश्वत. Eternally शाश्वत हुआ ना? Free from material contamination, निवर्त तमा. ठीक है? And has advantage to show mercy to the devotees. सद अनुग्रह. ठीक है? And manifestation of internal to the devotee as a manifestation of internal potency. What potency? कहाँ है internal potency? अवबोध रस. This incarnation is the origin of many other incarnations, and I was born from the lotus flower, lotus grown from your navel home. Say, now अब देख लिया आपने कैसे शब्द प्रभुपाद ने बिठाए हैं सारे श्लोक के. ये आपको समझ के पढ़ना हो गया. आपने समझ के पढ़ा क्या लिखा है. अब चक्रवर्ती पाद लिखते हैं बाय यूर मर्सी टू द डिवोटी बाय यूर चित्त शक्ति. अब अवबोध रस को कहते हैं चित्त शक्ति. इंटरनल पोटेंसी में कौन सी पोटेंसी? चित्त शक्ति, जिससे भगवान को जाना जा सकता है, उसको कहते हैं चित्त शक्ति. चित्त बाय चित्त शक्ति वी नो गॉड. तो अवबोध कौन सी इंटरनल एनर्जी है? चित्त शक्ति. ठीक है? You have shown by at the beginning this form which is eternally devoid of Maya. आदो को लिखा है beginning, and which is the seat of countless avatars, बीजम और सतैकम, and from whose navel appeared the lotus from which I have appeared. ये तो बात समझ में आ गई. अब श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य देखिए. श्रील प्रभुपाद एक बात लिख रहे हैं, वो आपके इंफॉर्मेशन के लिए है. वो इंफॉर्मेशन ये है कि 3 गुण अवतार्स आर एक्सपेंशन ऑफ गर्भोदक्षाई विष्णु. ठीक है? ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश, दीज आर 3 गुण अवतार. दे आर एक्सपेंशन ऑफ गर्भोदक्षाई. अब देखिए दूसरी लाइन देखिए. From Kshirodakshai Vishnu, many Vishnu incarnation expand at different ages in the duration of cosmic manifestation. तो सारे अवतार कहाँ से आते हैं कोई पूछे तो? क्षीरोदक्षाय विष्णु से. लेकिन फिर गुण अवतार गर्भोदक्षाय विष्णु से आते हैं. फिर इसको क्या करेंगे? क्योंकि गर्भोदक्षाय विष्णु से क्षीरोदक्षाय विष्णु आते हैं, इसलिए दोनों राइट है. बोथ आर करेक्ट. बोथ आर करेक्ट. श्री रूप गोस्वामी में लिखा है गर्भोदक्षा में सब आते हैं, क्योंकि एक ब्रह्मांड की आत्मा वो है. गर्भोदक्षाई विष्णु इज ए सोल ऑफ वन यूनिवर्स. तो उसी का काम है उस यूनिवर्स के अंदर जो है मेंटेनेंस करना, उसके इमरजेंसी को डील करना, वो उसका काम है. परंतु उसी का एक्सपेंशन है क्षीरोदक्षाय विष्णु. Therefore incarnation are coming from क्षीरोदक्षाय विष्णु. अब दूसरा मैं एक और टॉपिक अभी नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, आगे पढ़ रहे हैं. They are expended only for the transcendental happiness of the pure devotees. अब अवतार क्यों अवतार लेते हैं? भक्तों के
तब आपको कौन सा श्लोक याद आना चाहिए? परित्राणाय साधूनां विनाशाय। तो अपने साधुओं के आनंद के लिए अवतार लेते हैं। असुरों के संहार करने के लिए अवतार लेने की जरूरत नहीं है, वो तो प्रकृति के द्वारा भी हो सकता है। मुख्य उद्देश्य परित्राणाय साधूनां, वो बात हो गई। ये मैं बस इसलिए मैं क्वेश्चन करना चाह रहा था कि मैं थोड़ा उसको पेंडिंग में रखा। आपको पब्लिक में जाएंगे तो लोग कहते हैं सारे अवतार विष्णु से आते हैं, आपके किताब में लिखा है तो कृष्ण और बलराम भी विष्णु से आए, ये तो आपकी किताब में लिखा है। तो अब क्या उसको उतार दोगे, कैसे समझाओगे उसको? अभी पेंडिंग में रख मैं इसी स्टेज पे मैं कहना चाह रहा था, लेकिन वो तो लंबा हो जाएगा। Anyway, first people say like that, you accept, yes, you are right. All the incarnation are coming from Vishnu. आप उसको पहले एग्री करो कि सब अवतार विष्णु से आते हैं, आप सही हो। फिर आपसे उससे पूछो कि कौन से विष्णु से आते हैं भैया। तब वो कहता है विष्णु तो विष्णु है और कोई नहीं है। बोला मैंने 3 विष्णु के नाम बता दो उसको कि गर्भोदक्षाई, कारणोदक्षाई और क्षीरोदक्षाई, तीनों। फिर उसका माथा घूमेगा। फिर उसको भाई ये 3 विष्णु जो है इसको पुरुष अवतार कहते हैं। सारे अवतार इनसे आते हैं क्योंकि सृष्टि ये करते हैं। ये कहाँ से आते हैं पता है? मुझे मालूम नहीं, ये संकर्षण से आते हैं जी। संकर्षण बताए कहाँ से आता है? बलराम जी से आता है। बलराम जी बताए कहाँ से आता है? कृष्ण से आता है। फिर वो थोड़ा सोचेगा कि मैंने तो कभी पढ़ा नहीं था, मैं तो सुनी सुनाई बात कह रहा है, ये तो कह रहा है इस बात में कुछ वजन है। तो इसके लिए फार्मूला हमारा ये है, जो कोई ऐसा प्रश्न पूछे उसको पहले एग्री करो, फिर कंफ्यूज करो, फिर एजुकेट करो। इसके 3 स्टेप है, एग्री, कंफ्यूज, एजुकेट। ये इसका फार्मूला है। ठीक है, ओके। Oh Krishna. Okay, Srimad Prabhupada writes, it's a simple thing है, विष्णु तत्व और क्या हुआ? हाँ? नाराज क्यों हो गया? ये निकल गया बोला, ये सिस्टम डिस्कनेक्ट हुआ कहीं। हाँ? आ गया? ओके, यहाँ हम यहाँ हैं। अब एक शब्द क्या आ गया? The incarnation of Vishnu who appear at different ages and times are never to be compared to the conditioned souls. ये तो नॉर्मल आपको ISKCON में मालूम है कि they are not living entities. वो कौन है? विष्णु तत्व हैं। The Vishnu Tattva are not to be compared to the deities like Brahma and Shiva. अब ये बहुत बड़ी हेवी बात है। विष्णु तत्व should not be compared to the Brahma and Shiva. क्यों? इसमें क्या खराबी है? वो जीव तत्व है, ब्रह्मा जीव तत्व है और शंकर विष्णु तत्व नहीं है और नहीं है, तो उससे कंपेयर नहीं करना, ये दूसरा नाम अपराध है। इसलिए इसके नीचे क्या लिखा है देखो, दे आर सिमिलर, एनीवन हु कंपेयर देम इज कॉल्ड पाषंडी। और ये आपका क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, व्हाट इज पाषंडी?
तो आप उसको सीधा क्या लिखेंगे, एनीवन हु कंपेयर विष्णु तत्व विथ जीव तत्व इज पाषंडी, इंक्लूडिंग ब्रह्मा हु इज जीव तत्व एंड लॉर्ड शिवा हु इज नॉट ए जीव तत्व बट इज नॉट एग्जैक्टली विष्णु तत्व। थोड़ा क्लियर आपके दिमाग से आंसर होना चाहिए, और वैसे लिखेंगे तो अपराध हो जाएगा। देवताओं को ऐसे उस तरीके से लिखेंगे, देवताओं का अपराध करोगे तो वैष्णव अपराध हो जाएगा, लेकिन एक साइंटिफिकली आंसर देना चाहिए पूरा, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। तमस मेंशन हियर इन इज द मटेरियल नेचर and the spiritual nature is completely separate, different, existent from the tama. Therefore, spiritual nature is called avbodha rasa. इसको सब आसान बात कैसे समझेंगे, बहुत आसान बात। मटेरियल वर्ल्ड इज क्रिएशन ऑफ मटेरियल एनर्जी, स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज गवर्न्ड बाय स्पिरिचुअल एनर्जी। बहुत सिंपल है ना भाई, वहां भगवान की अंतरंग शक्ति है और यहाँ बाहरंग शक्ति है, तो अवबोध रस का मतलब अंतरंग शक्ति। बात सीधी हो गई, ज्यादा मतलब टेढ़ा समझने से सीधा समझना चाहिए, बहुत क्लियर, ठीक है। और अवबोध रस, अवरोध रस, अवरोध मीन्स दैट विच इज completely nullifies. In the trance there is no chance of material contact by any means. Brahma is the first living being, therefore he mentioned his birth from the lotus flower। लास्ट लाइन की बात कर रहे हैं। अब चक्रवर्ती पाद क्या रखेंगे, देखो, बट दिस फॉर्म दैट यू हैव डिस्क्राइब इज करंट। ब्रह्मा जी को कहते हैं, सब रुखर बोलते अभी ने आपने अभी फॉर्म देखा है, अभी आप पैदा हुए हो, हाँ। समथिंग यू सी टुडे, इफ इट इज रिसेंट इट इज नॉट एटर्नल। अभी है तो पहले ये एटर्नल कैसे हो सकता है? मानो पूछा जाए तो यूर वर्ड शो दैट, आप ऐसे ही कह रहे हो कि अभी देखा है मैंने, इसका मतलब अभी का है, एटर्नल नहीं है। वरिंग दैट द लॉर्ड विल जोक इन दिस वे, ब्रह्मा स्पीक्स बिकॉज इट इज काज्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ चित्त शक्ति अराइजिंग फ्रॉम योर स्वरूप, योर फॉर्म इज एटर्नल डिवोर्ड ऑफ माया। तो रीजन दिया है कि आपका फॉर्म चित्त शक्ति से, स्वरूप शक्ति से आता है, इसलिए एटर्नल है, और इसलिए कोई डाउट नहीं है इसमें। इट इज अराइजिंग फ्रॉम योर चित्त शक्ति एंड देयरफॉर इट इज एटर्नल एंड इज डिवाइड ऑफ माया तमस। बिकॉज दिस फॉर्म इज एटर्नल, द वर्ड ग्रहितम कैन नॉट मीन दैट लॉर्ड एक्सेप्टेड दिस फॉर्म एज मायावादी सेज। लिखा नहीं है यहाँ, लेकिन मैं कहता हूं, मायावादी कहते हैं ना कि भगवान ने माया का शरीर ग्रहण किया है, तो ग्रहित का अर्थ, दिस शुड बी नॉट बी द आंसर। The word grahitam here means, it simply means that the form appeared. This is the opinion of Sridhar Swami. Sandarbha says grahitam means the form is brought before the devotee's vision. भक्त के सामने भगवान का प्रकट होने को ग्रहितम कहते हैं। भाई मैंने प्रसाद ग्रहण करो, इसका मतलब आप मुझे कोई आप में से कहे कि प्रसाद ग्रहण करो, तो मेरे सामने प्रसाद रखोगे तब ग्रहण करूंगा, या आप प्रसाद घर में हो गए प्रसाद ग्रहण करो? आपने प्रसाद ग्रहण करो मतलब प्रसाद सामने रखा है, तो ग्रहित का मतलब है भगवान सामने आ जाता है, भक्त के भगवान सामने आ जाता है। इसके ऊपर राधा गोविंद स्वामी कभी कटाक्ष करते थे। प्रसाद जब बंटता है ना, कुछ भक्त ऐसे बड़े अति उदार होते हैं, हाथ, और प्रभु क्या चाहिए? बोले तेरे हाथ में है तो कुछ नहीं, क्या चाहिए? क्या कुछ लेके तो आना, ऐसे हाथ क्या चाहिए? कुछ हाथ में, कुछ प्रभु जी क्या चाहिए? वो बंद भी हो गया किचन में, प्रभु जी क्या चाहिए? तो ये जो ग्रहित का मतलब सामने हो, उसको ग्रहित कहते हैं। और फिर some person with material mind will say that this means that the Lord accepts material qualities. Others say that it means the form is accepted by the influence of the चित्त शक्ति, अवबोधो रसयम। तो हम अवबोध रस वाली बात को मानते हैं। ये हमारा दूसरा वर्ष पूरा हो गया, हम तीसरे वर्ष में जा रहे हैं।
शक्ति है। आत्म माया, माया के 3 अर्थ है, आज आएंगे कहीं यहाँ। माया का एक अर्थ है करुणा, जैसे माया को कहते हैं माता, मायामयी माता, करुणा। माया का एक अर्थ है ज्ञान, और माया का एक अर्थ है इल्यूजरी एनर्जी। और माया, योग माया भी है, माया भी है। आत्म माया, या मैं अपने स्वरूप में प्रकट होता हूँ। आत्म मतलब मैं है, माया मतलब मेरा स्वरूप, मैं अपने स्वरूप में प्रकट होता हूँ, मेरा अपना स्वरूप उसमें प्रकट होता हूँ। तो चित्त शक्ति, ठीक है। नातः परम परमं यद भवं स्वरूप भवतः स्वरूपम, आनंद मात्रम अविकल्पम अविद्यवर्चम वर्चः, पश्यामि विश्वसृज एकम ऐश्वर्यमात्मन्, भूतेन्द्रियात्मकन्मदश्च उपाश्रितो अस्मि। नात परम परम यद भवतः स्वरूपम, आपके स्वरूप से ऊपर कोई नहीं है, ये परम है, इससे ऊपर कोई स्वरूप नहीं है। और फिर कौन से स्वरूप की बात कर रहे हैं? अरे कुछ कोई कहते हैं ब्रह्म आपका स्वरूप होता है, तो कहते हैं ब्रह्म ऐसा ही है, आनंद मात्रम ब्रह्म है, अविकल्पम ब्रह्म है, अविद्य वर्च, जिसका वर्चस्व कभी खत्म नहीं होता, सदा एक जैसा वर्चस्व रहता है, वो ब्रह्म है। पश्यामि विश्व सृजम एकम, आप इस विश्व की सृष्टि कर सर्जन करते हैं, मैं देख रहा हूं, फिर भी आप इससे डिटैच हैं। और मैं हूं, सृष्टि करता हूं, और मैं अपने इंद्रियों से और अपने मन से इसको भोगना चाहता हूं, मैं पागल हूं। ब्रह्मा जी कह रहे, अब आप इसके श्लोक के अर्थ को पढ़ के देखिए शब्दों को। ओ माय लॉर्ड, I do not see a form superior to your present form of eternal bliss and knowledge. Param na param taswarupam, पहली लाइन। In your impersonal Brahma effulgence, Brahma effulgence, in the spiritual sky, there is no occasional change of vikalpam, no deterioration of internal potency. क्या लिखा है? आनंद मात्रम, ऐसरन। इसका एक अभी समझ लो, आगे समझ में आ जाएगा। देयर इज नो ऑकेजनल चेंज। चेंज कैसे आती है किसी चीज में? हाँ, किस समय के प्रभाव से? राइट को आंसर। काल से, काल के प्रभाव से चेंज आती है। आपके वहां काल का कोई प्रभाव नहीं है, ये इसका अर्थ हो, ठीक है। You become, you because where, I surrender unto you because whereas I am proud of my material body and senses, your lordship is the cause of cosmic manifestation, and yet you are untouched by matter. देखा, लास्ट लाइन का है। अब चक्रवर्ती पाद क्या कह रहे हैं, देखो। ओ सुप्रीम लॉर्ड, I do not see that you are different from your form as a Brahma. ये एक क्वेश्चन उठाते हैं चक्रवर्ती पाद। अरे भाई, तुम आप मुझे क्यों कहते हो ब्रह्म? सब कहते हैं ब्रह्म बड़ा है, बोला ब्रह्म आपसे अलग नहीं है, ब्रह्म आप में समाया हुआ है। क्यों ऐसे बोल रहे हैं ब्रह्मा जी? बिकॉज ही, ये एक, there is some question like that, so he speak like that. Oh Supreme Lord, I do not see that you are different from your form as a Brahma, which is without qualities and only bliss, Anand Matram Vikalpena. O form of unrestricted light, I, full of pride in thinking I can get pleasure by body, senses and mind, take shelter of you, your one form which is spiritual but which create this universe. ये और क्लियर आपको एग्जैक्टली सब शब्द दिख रहे हैं इसमें।
more clear. अब चक्रवर्ती श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य में देखो, आ रहा है कुछ समझ में? नहीं? इज इट क्लियर? आप सृष्टि करता हो फिर भी उससे आसक्त नहीं हो, और मैं सेकेंडरी क्रिएटर हूं फिर भी एंजॉयमेंट के कारण मैं अहंकार में हूं, मुझे मत है। अब एज स्टेटेड इन भगवत गीता, प्रभुपाद जी पहले लिखते हैं भगवान को जाना कैसे जाता है, भक्त्या माम अभी जाना थी, ये तो सबको मालूम है। और ब्रह्म संहिता में भी ऐसे लिखा है, अद्वैतम अनादिम अनंत रूपम। हाँ, ये श्लोक भी है, सबको मालूम है। क्यों लिखे हैं प्रभुपाद ने ये श्लोक? ओनली वे टू अंडरस्टैंड द लॉर्ड एज ही इज बाय डिवोशनल सर्विस टू द लॉर्ड and by approaching the devotee of the Lord who always has the Lord in his heart. भगवान को कौन समझ सकता है? जो भक्ति के मार्ग से चलेगा। भक्ति कहां से मिलेगी? भक्तों के संग से। कौन से भक्तों के संग से मिलेगी? जिनके हृदय में आप, क्या लिखा है देखो, जिनके हृदय में आप बैठे हैं। अब जब किसी के हृदय में भगवान बैठे हैं, कोई आपके दिमाग में आता है ऐसा? आर यू थिंकिंग ऑफ सब कोई सांग भजन? कृष्णा से तो मार, कृष्णा देते अमी तो कंगा। उसका पहला क्या लाइन है? तो हृदय गोविंद विश्राम। दोनों को मिक्स कर लो। प्रभुपाद जब ये लिख रहे हैं, ये भजन प्रभुपाद जी के सबकॉन्शियस में गूंज रहे हैं, तब ये लाइनें लिख रहे हैं। जब लिखने के समय आखिर ये लाइनें लिखी क्यों है? ऐसे तो सारे भक्त एक एक रोड पे खड़े हैं, उनसे नहीं मिलेगी भक्ति कि भगवान मिल जाए। वो उत्तम अधिकारी की परिभाषा बताई जा रही है। उत्तम अधिकारी की परिभाषा बता रही है, who always has the Lord in his heart. By devotional perfection one can understand the impersonal Brahm Jyoti is the only partial representation. अब देखो ये by devotional perfection, क्या है devotional perfection? किसको कहते हैं? हाँ जी, devotional perfection किसको कहते हैं? Devotional perfection. Yes, devotional perfection means achieving the bhav bhakti at least or prema bhakti. Devotional perfection means bhav bhakti or prema bhakti. That's right. कहाँ पहुंचे हम? Oh, at the perfection of the understanding impersonal Brahma Jyoti is only a partial representation of Supreme Lord of the Godhead, Lord Krishna. And that the three Purusha expansion of the material creation, in the material creation, are its plenary portions. In the spiritual sky of Brahma, Jyoti, there is no change of various kalpas or millennia, which means that there is no creative activity in the Vaikuntha Lok. The influence time is conspicuous by its absence. कोई टाइम का प्रभाव आध्यात्मिक जगत में नहीं है। ये बात हमने वहां आपको बताई थी कुछ शब्द। द इन्फ्लुएंस ऑफ द टाइम, ओके, द रेज ऑफ द ट्रांसनल बॉडी ऑफ द लॉर्ड, द अनलिमिटेड ब्रह्म ज्योति आर अनडिटर्ड बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ मटेरियल एनर्जी। इन द मटेरियल वर्ल्ड आल्सो द इनिशियल क्रिएटर इज द लॉर्ड हिमसेल्फ। इनिशियल क्रिएटर इज लॉर्ड हिमसेल्फ। वो कौन सी क्रिएशन है जो लॉर्ड हिमसेल्फ है? इनिशियल सर्ग। ठीक है, वेरी गुड। ही ब्रिंग्स अबाउट द क्रिएशन ऑफ द ब्रह्मा हु बिकम द सबसिक्वेंट क्रिएटर एम्पावर्ड बाय द लॉर्ड। चक्रवर्ती पाद क्या लिखते हैं देखिए। बट सम से दैट ओरिजिनल फॉर्म इज ब्रह्म विदाउट क्वालिटीज, नॉट द लॉर्ड विथ क्वालिटीज।
मानो ये क्वेश्चन करे विष्णु, तो ब्रह्मा कहते हैं, ओ सुप्रीम लॉर्ड, आई डू नॉट सी दिस फॉर्म एज डिफरेंट फ्रॉम योर फॉर्म एज ए ब्रह्म, which is without qualities, avikalpam, and only bliss, anand matram. But this form include Brahm. Brahm does not include this form. ये लाइनें बड़ी अच्छी है, ध्यान में रखने जैसी है। इन लाइनों को ध्यान रखना। Your form include Brahm, but Brahm's form does not include you. This form includes Brahm, but Brahm does not include you. अब ब्रह्म क्या कर सकता है? ओके, ठीक है। The Brahma, O Lord, whose effulgence is Brahm. हरिवंश पुराण में एक अर्जुन को भगवान कहते हैं ब्रह्म के बारे में, यत्परम परमं ब्रह्म सर्वं विभजति जगत्तम ममैव तदघनं तेज ज्ञात ज्ञाता महर्षि विभारता। The supreme Brahma light up the whole universe. You should know that it is my condensed light. Though Brahma and the and the personal form are one, where do you reside with Brahma or personal form? अब ये अगर भगवान पूछे ब्रह्मा जी से कि अगर आप कहते हैं ब्रह्म और पर्सनल फॉर्म एक है, तो आप कहाँ रहना चाहते हो? तो ब्रह्मा जी क्या आंसर दे रहे हैं? I take shelter of one form, ekam, of you, of you only. उसके बाद क्या है? Te, who create the universe, Vishwa Sarjam. But you, Brahma, create this universe. Oh, you are also different from the universe. You create universe, but you are different from universe. I create universe, but I identify with the universe. Brahma कह रहा है, I have pride, madam, that I gain pleasure by body, senses and mind. He criticizes himself as material. अब ये दोनों परपट को देखने के बाद प्रभुपाद का परपट बहुत क्लियर हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे सेम वर्स इज कोटेड इन चैतन्य चैतन्यमृत मध्य लीला। This verse was spoken by Lord Brahma, who perfectly realized the Supreme Personality of Godhead after meditating upon the Lord within the world of Garbhodaksha ocean. Brahma realized that the form of Lord is completely spiritual. This is certainly a better understanding of the absolute truth than the impersonal understanding. वहाँ प्रभुपाद ने ये लिखा है। अब हम ये वर्स नंबर 4 पे आते हैं। Why surrender to personal form only? ये कनेक्शन है वर्स नंबर 4। यद्वा इदं भुवन मंगल मंगलाय ध्याने समनो दर्शितं तप उपासकानां तस्मै नमो भगवते अनुविधेन तुभ्यम् यो नादृतो नर्कभागिभिः असत्प्रसंगैः। This present form or any transcendental form expanded by Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna, is equally auspicious for all universe. Mangalam Mangalaya. Since you have manifested this eternal personal form upon whom your devotees meditate, Anudhyaye, I therefore offer respectful obeisances unto you. Those who are destined to be dispatched to the path of hell neglect your personal form because of speculating on material topics. Last line में है ना, नरकगामी है। O Lord of the auspiciousness, Mangalaya, for the whole world, this personal form is the benefit of the world. For the benefit of the world,
and it was shown to me, your worshipper, by meditation. Anudheyam. Therefore I offer respect to that form, personal form. Let me only serve you, who are not respected by those who will go to hell, proclaiming that your personal form is false. Srila Prabhupada's purport. Regarding personal and impersonal feature of Supreme Absolute Truth, the personal form exhibited by the Lord in his different plenary expansion are all for the benediction of the all universe. Indradi Vyakulam Lokam Vardyanti Yuge Yuge. तो सारे जगत के हित के लिए भगवान अवतार लेते हैं, ठीक है. The personal form of Lord is also worshipped in meditation as super soul, Paramatma. But the impersonal Brahma Jyoti is not worshipped. क्या वर्शिप करोगे? लाइट का क्या वर्शिप करोगे? परमात्मा का तो ध्यान हो सकता है, लेकिन लाइट का क्या करोगे? Persons who are addicted to the impersonal feature of Lord, whether in meditation or otherwise, are all pilgrims to the hell, because as stated in Bhagavad Gita 12.5. कौन सा श्लोक है? क्लेशो अधिक तेषाम अव्यक्ता सक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देव. So those who meditate on an impersonal form, they have more miseries. And where are the miseries generally? नर्क में भाई. तो they are नर्कगामी. What it means है, यहाँ उनको नर्कगामी कहा है. प्रभुपाद का पर्पट ऐसा है. ये बेसिकली यहाँ आपको एक बात समझनी चाहिए. There are मायावादी and there are ब्रह्मवादी. There's a difference between the two. आप लोग जानते हैं ये दोनों में फर्क है? हाँ, इट्स क्लियर. तो नर्क में कौन जाएगा? मायावादी, ब्रह्मवादी. और ब्रह्मवादी कहाँ जाएगा? ब्रह्म में जाएगा. तो ये मायावादियों के लिए, ब्रह्मवादियों के लिए नहीं है. तो दोनों में फर्क है, ठीक है. लेकिन आश्चर्य तो ये है कि जो श्लोक भगवत गीता का है वो ब्रह्मवादियों के लिए, मायावादियों के लिए नहीं है. दिस वर्स ऑफ भगवत गीता इज फॉर ब्रह्मवादी, नॉट फॉर मायावादी. क्योंकि मायावादियों के लिए तो पहले आ गया अवजानंती माम मूढ़ा. तो ये है ब्रह्मवादियों की वर्ष. अब देखते हैं और आगे क्या होता है. Impersonal simply waste their time in mundane mental speculation because they are addicted more to a false argument than to reality. Therefore, the association of impersonal is condemned herewith by Brahma. All the plenary expansion of Supreme Personality God are equally potent and confirmed in Brahma Santa. Deepariche. Yeah? This is very simple. From primary, light or lights are coming. The Lord expand himself as the flame of fire expand one after another. Although the original flame or Krishna is accepted as Govinda, the Supreme Person, all other expansion like Ram, as Ram, Nrsimha, are as potent as original Lord. All such expanded forms are transcendental. In the beginning of Srimad Bhagavatam, it is made clear that the Supreme Truth is eternally uncontaminated by material touch. There is no jugglery of words and activities in the transcendental kingdom of the Lord. ये कहाँ लिखा है भाई? In the beginning of Srimad Bhagavatam, it is made clear that absolute truth is eternally uncontaminated by material touch. कहाँ लिखा है? हाँ? निरस्तकुवकम फर्स्ट वर्स वाला राइट है, सेकंड वाला नहीं, फर्स्ट वाला. नरतकुवकम right. This is another way to read the purport. When Prabhupada writes something, Bhagavatam, sometimes he never quotes, then you have to search that verse, which verse Prabhupada has quoted. Okay? There is no jugglery of words and activities in the spiritual kingdom of the Lord. All the Lord's form of transcendence and such manifestations are ever identical. The particular form of the Lord exhibited to a devotee is not mundane, even though the devotee may retain material desire. Nor is it
nor is it manifest under the influence of material energy, as is foolishly considered by impersonalists. Impersonalists who consider the transcendental form of Lord to be product of material world are surely destined to hell. ये मायावादी है. एक बात नहीं समझ में आई, ये आई आपको समझ में? A particular form of the Lord exhibited to a devotee is not mundane even though the devotee may retain material desire. कौन सा एग्जाम्पल देंगे इसका? क्या बोला? समझा नहीं क्या कहा प्रभु जी ने? ध्रुव महाराज भगवान भी उनके सामने आया, वो तो दिव्य था. ध्रुव के अंदर में मटेरियल डिजायर थी. ये ध्रुव वाला जो है ये ज्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा. क्या ख्याल है? अर्चा विग्रह के सामने सब मटेरियल डिजायर के साथ है. ऑलमोस्ट एवरीबडी इज गोइंग लाइक दैट. ध्रुवा के सामने जो भगवान का विग्रह, अर्चा विग्रह इज आल्सो एक्सेप्टेड. भगवान का अर्चा विग्रह भी दिव्य है और लोगों को भले भौतिक है, ये भी ठीक है. एग्जाम्पल ध्रुव वाला सॉलिड, एग्जाम्पल ध्रुव वाला भी सॉलिड है. ओके. अर्चा विग्रह example will suit for two statements. There is another statement also. अब वैसे एक दृष्टि से देखा जाए अर्चा विग्रह मटेरियल फॉर्म तो है ना. इट्स मेड ऑफ मैटर, दो इट इज स्पिरिचुअल फॉर द स्पिरिचुअल विजन ऑफ ए डिवोटी. पर वो तो जो भगवान का फॉर्म है वो मटेरियल है ही नहीं. सो एनीवे ध्रुव वाला एग्जाम्पल इज मोर सॉलिड. ओके. चक्रवर्ती पाद राइट्स, you are auspicious for the whole world. The materialists do not respect the form that you show for giving auspicious to us. I offer respect to you repeatedly. Why do you not take shelter of impersonal Brahma? The form with quality is for the giving benefit of earth, dharma, kam and moksha to the people of the 14 planetary systems. Worship of the personal form produce these benefits. Doing otherwise is useless. इसका मतलब क्या हुआ? Personal form can fulfill the desire of dharma, artha, kam and moksha. Not Brahma cannot do that. Brahma cannot reciprocate with that. ये बात खास कर. This is the most important difference between the worshipping of Brahma and worshipping of the personal form. I offer respect to you repeatedly. Why do you not take shelter of Brahma Jyoti? The form with qualities is for giving benefit of earth, dharma, kam and moksha to the people of the 14 planetary systems. Worship of the personal form produce this effect. Doing otherwise is useless. Worship of impersonal Brahma will not give these benefits. That personal form was revealed to me in my meditation. I do not see impersonal form, Brahma. Therefore, the personal form is much more merciful. I thus offer respect to you, the personal form and ocean of spiritual qualities. Let me serve only you, anuvidhena dhema. What service can I do for you? But some persons say that this form is not full of eternal bliss and knowledge and bliss, but material. Do not respect it. Oh, it is not respected by those who will fall to hell and narkabhagi, and who indulge in thinking prasangai that form is false, asat, or by those who associate with materialists. So things are clear. Last verse of this section. ये तो त्वदीय चरणाम्बुज कोश गंधम जिघरन्ति करण विवरहि श्रुतिवात नीतम. भक्त्या गृहीत चरणाः परया च तेषाम्
आपैशिनाथ हृदयानो न क्या हृदय अम्बरोहात स्वपुंसाम. O my Lord, person who smell the aroma of your lotus feet carried by the air of Vedic sound through the holes of the ears, accept your devotional service. For them, you are never separated from the lotus of their hearts. O Master, you do not give up the lotus heart of your devotees who smell through their ears the fragrance of your lotus feet, brought by this wind of the Vedas, and take your lotus feet as the greatest treasure through prema bhakti. Srila Prabhupada's purport. For the pure devotee of the Lord, there is nothing beyond the lotus feet of the Lord. And the Lord knows that such devotees do not wish anything more than that. The word "tu" specifically establishes this fact. The Lord also does not wish to separate from the lotus heart of pure devotees. That is the transcendental relationship between the pure devotee and Lord. कोई श्लोक याद आता है इसके ऊपर? साधो हृदय मह्यम अहम साधो. ये है प्योर डिवोटी का. Because Lord does not wish to separate himself from the heart of such pure devotee, it is mentioned that they are specifically dearer than the trans-impersonalist. The relation of pure devotee with the Lord develops because of the devotional service to the Lord on the authentic basis of the Vedic authority. Such pure devotees are not mundane sentimentalists, but are factually realists, because their activities are supported by Vedic authorities who have given the oral reception to the facts mentioned in the Vedic literature. The word paraya is very significant. Para bhakti, the spontaneous love of God, is the basis of intimate relationship with Lord. This highest stage of relationship with the Lord can be attained simply by hearing about Him, His name, form, quality, etc., from a authentic source like Bhagavad Gita and Srimad Bhagvatam, recited by pure unallied devotees of the Lord. अब ये purport पढ़िए. No, the worshipper of the impersonal. Yes, microphone लीजिए. The worshippers of the impersonal Brahman are described as jnanis in the scriptures. The worshippers of the personal form are described as devotees. Among the two types of people, the devotees are successful and dear to the Lord. This is explained in the two verses. Shruti refers to the Vedas or the process of hearing in bhakti. The devotees smell through the ears of the fragrance of your lotus feet, brought by the wind of the Vedas, are hearing process, and accept your feet as the final goal of human endeavor with the highest devotion, prema bhakti, like bees eager for the fragrance of your lotus feet. Just as they do not give up their greed for your lotus feet, you also do not give up them. Being greedy for their lotus hearts filled with the sweet prema, they mutually bring each other under control. So क्या लिखा इसमें, क्या लगा? ज्ञानी और भक्त में डिफरेंस है. अब ये भक्त, शुद्ध भक्त की, ये दिस वर्स इज अबाउट द प्योर डिवोटी. Hearing Veda is for jnanis. Hearing and chanting holy name is for the devotee. Process same hearing है, श्रुत है. Shruti also means Veda. Shruti also means hearing.
So Shruti has two meaning. One is for Jnani and one is for devotee. तो यहाँ हमारा फर्स्ट सेक्शन पूरा हुआ. सिक्स सेक्शन में प्रिडिक्टमेंट ऑफ द कंडीशन सोल. इसका मतलब प्रॉब्लम ऑफ कंडीशन सोल, अनफॉर्चुनेट कंडीशन ऑफ कंडीशन सोल. अब श्लोक 6 पढ़ रहे हैं. तावद् भयं द्रविणेन देह सुहृन्न निमित्तम् शोकस्पराः परिभवो विपुलश्च लोभः तावन्ममेति असत् अवग्रह आर्तिमूलम् यावन्ने अनिग्रहम् अभयम् प्रवृणीत लोका. अभी हमने जो 5वीं वर्ष पढ़ी उसमें क्या था? शुद्ध भक्ति कंपेयर्ड विद द ज्ञानीज. इस समय इस श्लोक में चक्रवर्ती बात कहते हैं कि पहले हाफ और दूसरे हाफ में ये दो चीजें हैं. पहले हाफ में अनर्थ निवृत्ति है, दूसरे हाथ में अनर्थ निवृत्ति अभी नहीं हुई है. ये श्लोक का रूप ये है. तावत जब तक भय द्रविणं देह स्वर्ण निमित्तम शोक स्परा परिभव विपुलस च लोभ. ये जब तक समाप्त नहीं हुए, इसका मतलब अनर्थ निवृत्ति का स्टेज. और तावन ममेति, तब तक वो क्या कहेगा? मैं और मेरा. अहम ममेति आरती मूलम, सब दुखों का कारण है. तो इस श्लोक में दो बातें हैं. ऊपर अनर्थ निवृत्ति तक का स्टेज है, नीचे अनर्थ निवृत्ति से पहले का स्टेज है, और इससे पहले वाला शुद्ध भक्ति का है. तो एक श्लोक को ऐसे इस तरीके से विभाजन किया हुआ है. अब इसका ट्रांसलेशन ये है. ओ माय लॉर्ड, द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर एम्ब्रेस्ड बाय ऑल मटेरियल एंग्जाइटीज. दे आर ऑलवेज अफ्रेड. They always try to protect wealth, body and friends, and they are filled with lamentation and unlawful desires and paraphernalia. And they are avariciously based their undertaking on the perishable conception of my and mine. As long as they do not take shelter of your Lord's feet, they are full of such anxieties. अब चक्रवर्ती पाद ने भी ऐसे ही कुछ लिखा है. Srila Prabhupada's purport. One may question how one can always think of Lord in regard to His name, fame, quality exactly, if one is embraced by thought of family affairs. Everyone is in the material world is full of thought about how to maintain his family, how to protect his wealth, and how to keep pace with the friends and relatives, etc. The question उठाया प्रभुपाद जी ने. How can we think always of Krishna? Thus he always in fear and lamentation, trying to keep up with the status quo. In answering to this question, this verse spoken by Brahma is very appropriate. A pure devotee of Lord never think of himself as the proprietor of his home. He surrenders everything unto the supreme controller of the Lord, and thus he has no fear for maintaining his body or protecting the interest of his family. कोई आता है दिमाग में जब ये पढ़ रहे हैं शुद्ध भक्त के लिए? श्रीवास ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर का एक भजन, देहो गेहो मानस देहो वो जो कुछ मेरो अर्पे लो तो नंद किशोर, मारो भी राखो भी. ये स्थिति है. ये लग रहा है ऐसे ऐसे समझना चाहिए कि प्रैक्टिकल कैसे है. प्रैक्टिकल ऐसे है
कि सब कुछ भगवान को अर्पण कर लिया। श्रीनिवास ठाकुर इज एग्जाम्पल, ही वॉज कंप्लीट डिपेंडेंट, भगवान के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, बिकॉज ऑफ हिज दिस सरेंडर he no longer has any attraction for wealth. Even if there is attraction for wealth, it is not for sense gratification, but for the service of the Lord. A pure devotee may be attracted to accumulating wealth, but it's not like an ordinary man. अब प्रभुपाद का डिफरेंस ये है कि भक्त भी पैसा इकट्ठा करता है, लेकिन भगवान की सेवा के लिए दुनिया वाला अपने लिए करता है इसलिए परेशान है, और भगवान के लिए करता है इसलिए परेशान नहीं। दिस इज द रेस्ट ऑफ द पर्पस इज लाइक दैट। अब एक लास्ट लाइन है जो आपका क्वेश्चन बैंक में है, और ये एनालॉजी है, देखो यहां पढ़ रहा हूं मैं। इफ ए स्नेक हैज इट्स poison removed and bites a man, there is no fatal effect. Similarly, wealth accumulated in the cause of the Lord has no poisonous teeth, and the effect is not fatal. A pure devotee is never entangled in material worldly affairs, even though he may remain in the world like an ordinary man. तो ये एनालॉजी आपकी पूछी जाएगी कि ये क्यों बताई गई है, ठीक है। अब चक्रवर्ती पाद का परपट पढ़ रहे हैं। But devotees, if they have wives, children and wealth, are also materialists. भक्ति विनोद ठाकुर मटेरियलिस्ट था, प्रभुपाद मटेरियलिस्ट था, फैमिली थी, बच्चे थे। No, this is not true. Materialists suffer continued material existence, bhayam, caused by attachment to wealth, body and friends. This existence consists of lamentation, desire, defeat and great greed, as long as they do not accept your Lord's speech as having power, or to speak in the opposite way. If they accept those feet completely, then by attachment to you, they will give up attachment to wealth, etc. And if one is a devotee and has attachment to the wealth, etc., one should still not worry. The bite of the snake whose 2 front teeth have been extracted does not cause suffering. Thus, just accepting your feet as worthy of service destroy the very cause of material existence. ये क्लियर हो गया परपट? ग्रस्तक या माया में नहीं, क्योंकि उन्होंने भगवान का शरण लिया है, या जिसने भगवान के चरणों का शरण लिया है उसको माया कुछ नहीं कर सकती। उसके पास धन भी आएगा तो बिना पॉइजनस टीथ वाले सांप जैसा काटेगा, कोई घातक नहीं होगा। अब ये एक श्लोक आगे कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा? ये श्लोक है 10-14 में भागवत में। तावद रागाद्य हस्तेना तावद काराग्रहं ग्रहं तावन मोहो अंग्रिहि निगणो न यावत कृष्ण न ते जनाः। My dear Lord Krishna, until people become pure devotees, their material attachment and desires remain thieves, their homes remain prisons, and their affectionate feeling for their family members remains foot shackles. The word tavat has been used in both verses. Both मतलब इसमें जो भागवत की में 10th canto में और इसमें भी, making the case strong. Thus, in this verse, 3 types of devotees have been described. Those who have great attachment to the Lord, described in the previous verse. जिसके कानों में भगवान की कथा आ गई, चरणों का शरण ले लिया, अब चरण न भगवान उनका दिल छोड़ता है और न वो भगवान को दिल से निकालते। ये तो हो गया एक। अब दूसरे कौन से हैं? Those who are at the stage of unearth nivritti, described in first half of this verse. And those who have not accomplished unearth nivritti, described in the last part of this verse. तो this verse में जैसे हमने आपको शुरू में कह दिया, 2 प्रकार के डिवोटी है।
अनर्थ निवृत्ति तक पहुंचे हुए और अनर्थ निवृत्ति से पहले के। और जो 5वां श्लोक है इसका वो शुद्ध भक्ति का है। ठीक है, ये 3 प्रकार के ये भक्त हैं। आप लोग कौन से स्तर पे, अनर्थ निवृत्ति पे है, बिफोर है, या सबसे ऊपर है? अनर्थ निवृत्ति का क्या हाल है? अच्छा, अनर्थ निवृत्ति में और सिन में क्या फर्क है? Anarth nivritti is the spiritual progress of the prema. After taking initiation, if we commit any offenses, there is anarth. And sins are described even by sadhan bhakti. This is klesha ghani. So, sin klesha ghani है, sin खत्म भी हो जाएंगे तो अनर्थ चालू फिर होते हैं। और क्लेश घनी कौन सी स्टेज तक होगी आपके विचार में? साधना भक्ति में कहाँ? अनर्थ निवृत्ति जब तक नहीं होती है तब तक क्लेश घनी भी पूरी नहीं होती। अनर्थ निवृत्ति तक क्लेश घनी भी चलती है। साधन भक्ति में है ना अनर्थ निवृत्ति, तो ऐसा नहीं है कि एकदम खत्म नहीं हो जाती। हम कौन से स्टेज पे हैं? आदो श्रद्धा, सेफ स्टेज यही है। बिकॉज भक्त, द डिवोशन डिपेंड्स अपॉन द फेथ। एक श्रद्धा है तो काम चलेगा। ओके, वर्स नंबर 7। तो फिर भाई इतना सारा तकलीफ है दुनिया में, सबको भगवान की भक्ति करना चाहिए ना? बोला नहीं कर सकते। सुनो, दैवेन ते हत धियो भव तपसंगात् सर्वाशुभ उपशमनाद विमुक्त इंद्रियाये कुर्वन्ति काम सुखलेश लवाय दीना लोभा विभूत मनसो कुशल अकुशलानि शश्वत्। अकुशलानि, ओ माय लॉर्ड, ओ माय लॉर्ड, persons who are bereft of all auspicious performance of chanting and hearing about your transcendental activities are certainly unfortunate and are also bereft of all good sense. They engage in inauspicious activities, enjoying sense gratification for very little while. Lava, क्या लिखा था? लवाय, लवाय, for little while. Those miserable persons who have lost their intelligence because of offense to you, whose senses are turned away from things associated with you, which cause destruction of all inauspiciousness, and whose minds are controlled by greed for the particle of sensual happiness, continually command sinful activities. Akushlani. Akushlani means sinful activities. The next question is why people are against such auspicious activities as chanting and hearing the glories of pastime of the Lord, which can bring total freedom from the cares of the anxiety and material etc. The only answer to this question is that they are unfortunate because of the supernatural control, devena, due to their offensive activities performed
akushalaani karma. Akushalaani karma. Performed simply for the sake of sense gratification. The Lord's pure devotee, however, take compassion upon such unfortunate persons, and in missionary spirit try to pursue them in the line of devotional suffering. Only by the grace of pure devotee can such unfortunate man be elevated to the position of transcendental service. Well, if that is case, then everyone should be intelligent and surrender to my feet. Lord is asking this question. Who would be left in this world? This verse replies, Devena, means by the evil effect arising from offenses to you. Akushalani means activities of enjoyment and forbidden actions. क्यों नहीं सब हरे कृष्णा जप सकते हैं? आपका क्या जवाब है? Now you tell me in your own language. Because they are committing offensive activities for the sake of sense gratifications. कब की थी? अभी की या पहले की थी? दैवीन जब शब्द आता है तो हमको समझना है देव नेत्रेण। इसका मतलब गर्भ में जब जीव आता है तो वो अपने अकुशलानी कर्म साथ लाता है और उसके कारण वो चाहे तो भी भगवान की भक्ति के कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि उसके कर्म उसको करने नहीं देंगे। इसलिए भागवत के दूसरा श्लोक पढ़िए, मंगलाचरण का दूसरा श्लोक पढ़िए। धर्म प्रोजित कैतव निर्मत्सराणाम सताम वेदम वासवं सुविष्णु सावना तापत्र्योन्मूलनम श्रीमद् भागवत पुराणम महामुनि कृते कृति भी अवरुध्यते। कृति भी का मतलब क्या है? भगवान भागवत सुनने जाओगे हृदय में अवरुद्ध हो जाएंगे, लेकिन किसके? सब क्यों नहीं आते भागवत सुनने? कृति भी सुकृति भी, जिसकी सुकृति उदय हुई वही आएगा, जिसकी सुकृति उदय हुई नहीं है वो नहीं आएगा। सुकृति भी तो इन विचारों का अभी दुष्कृति चल रही है, इसलिए चाहो तो भी नहीं ले सकते। देवेन का मतलब अपने पुराने कर्मों के, वो अपने ही पापों के कारण। लेकिन फिर भी प्रभुपाद के परपट में एक बहुत बड़ी बात है कि डिवोटीज टेक कंपैशन ऑन सच पीपल एंड ट्राई टू प्रीच देम आल्सो एंड टू ब्रिंग देम। भक्त उनके ऊपर भी कृपा करना चाहते हैं, उनका कृपा। एक और जब ये हम पढ़ रहे थे तात्पर्य, तो आपको एक और श्लोक याद आना चाहिए था प्रभुपाद के परपट में। देखो क्या लिखा है। They are unfortunate because of they are unfortunate. ये unfortunate शब्द कहीं और कहीं पढ़ा है क्या? प्रायण अल्पायुषः सभ्य ये जब देखो तो वो उसको याद रखना चाहिए। नहीं कर सकते, क्या करें? दुर्भाग्य, मंदमती है, सुमंद भाग्य है। अब वो उनका तो भाग पहले से खराब था। ये मूल खाते हैं 8 नंबर में, ये फूल्स हैं। देखो ये फूल्स आ गए। शुत्रिट त्रिधातु भी इमा मोहो आरध्यमाना शीतोष्णवात वर्षै इतरतरा च कामाग्नि अच्युतरुषा च
सुदुर्भरेण इसमें एक अच्युत पड़ा है, ये पहली बार अच्युत किसी और काम के लिए काम आया, भगवान के लिए नहीं है। देख लो, ये अच्युत भगवान के लिए नहीं है। किसके लिए अच्युत? देखो जरा, काम अग्नि अच्युत रुषा, ये एक शब्द है। देख पढ़ो, वर्ड टू वर्ड मीनिंग पढ़ो। ये अच्युत क्यों है? इनफटिकेबल अच्युत क्या है? इनफटिकेबल एंगर एंड लस्ट, काम लस्ट एंगर, रुषा काम अग्नि। Word to word meaning is काम अग्नि, the strong sexual urge, अच्युत रुषा, infatigable anger। तो ये अच्युत पहली बार जो है भगवान के लिए नहीं है। इनफटिगेबल एंगर, ओके। ओ ग्रेट एक्टर, कहाँ भगवान को एक्टर का है? कौन सा श्लोक है एक्टर के लिए भाई? यहाँ कहाँ है? कौन सा वर्ड है? उरुकर्म। हाँ, उरुकर्म एक्टर क्यों है? आया था वामन देव बन के और बड़ा त्रिगुण बन गया, एक्टर हो गया ना। प्रभुपाद ने लिखा है एक्टर, तो कोई तो कारण होगा। उरुकर्म को एक्टर क्यों लिखा है? आया छोटा और बड़ा के बन गया तो एक्टर ही हो गया ना। Oh great actor, my lord, all these poor creatures are constantly perplexed by the hunger, thirst, severe cold, secretion of bile, attracted by coughing winter and blasting summer, rains and many other disturbing elements, and overwhelmed by strong sex urge and infatigable anger. I take pity on them and I am very much aggrieved for them. Srila Prabhupada's purport. A pure devotee of Lord like Brahma and a person in sadhana succession are always unhappy to see the perplexities of the conditioned souls who are suffering the onslaught of threefold miseries which pertain to the body and mind, to the disturbance of the material nature, and to many other such material and disordered advantages. Not knowing adequate measures for relieving such difficulties, suffering persons sometimes pose themselves as leaders of the people, and unfortunate followers are put into further disadvantages under such so-called leadership. This is called blind man's leading another blind man to fall into the ditch. कहाँ से है ये? अंधा जो अंधा उपगीय मानव, अंधे लीडर दूसरे अंधों को ले जा रहे हैं, खड्डे में गिराएंगे। ठीक। Therefore, unless the devotee of Lord take pity on them and teach them the right path, their lives are hopeless failure. The devotees of Lord who voluntarily take the responsibility of raising the foolish materialistic sense enjoyer are as confidential to the Lord as Lord Brahma. So, अब चक्रवर्ती पाद क्या लिखते हैं? I lament for others also who are like animals devoid of understanding their own benefit. Living entities, Ima, suffer because of hunger, thirst, from vat, pitta and shleman, tridhatuvi, from heat, cold, wind, rain, from each and other such as that, from the fire of lust and continual anger, which are difficult to bear. Seeing those suffering and as I suffer in my mind, I become depressed, thinking, how can these living beings be delivered? So, ye pity on them. This is the verse number 9. Oh, इसके ऊपर एंड सेकंड थर्ड इसके ऊपर वर्ष के ऊपर कौन सा है? Heart of compassionate devotees is in great agony
that the heart of those who are suffering. And इसके ऊपर प्रभुपाद का मार्किनी भागवत धर्म का पोएम, अमेरिका पे उतरते उनके दुख के ऊपर जो भाव है इस लाइन में है. See another thought on this verse कि you can refer to that. कभी इस वर्ष के ऊपर बोलना है तो प्रभुपाद का मार्किनी भागवत धर्म. वर्स नंबर 9. यावत् पृथक्त्वम् इमन्नात्म इन्द्रियार्थ माया बलं भगवतो जनो ईश पश्येत् तावन्न संश्रुति असहो प्रतिसंक्रमेत. व्यर्थापि हि दुःख निहवं वहति क्रियार्था. Oh my Lord, the material miseries are without factual existence for the soul. Yet as long as the conditioned soul sees the body as meant for sense enjoyment, he cannot get out of the entanglement of material miseries being influenced by your external energy. Srila Prabhupada's purport. The whole trouble of living entity in the material existence is that he has an independent conception. And Prabhupada's purport is living entity's problem is independent concept. क्या है independent concept को क्या कहेंगे? What was that? Thinking independent, separate from the Lord. Materialist? Prithak manina. Prithak manina. Prabhupada, the Prabhupada is very nice. He is always dependent on the rules of the Supreme Lord in both the conditioned and liberated state. इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? Living entity is always subordinate to the Lord, both in conditional and liberated state. इसको कैसे समझेंगे? Living entity is always subordinate. If he is in the material world, he is under the material energy. And in the spiritual world, he is under the spiritual energy. So in both places, he is not independent. He is subordinate. But by the influence of external energy, the conditioned soul thinks himself independent of supreme personal, supremacy of supreme personal Godhead. His constitutional position is devoted himself with the desire of the Supreme Lord, but as long as he does not do so, he is sure to drag in these shackles of material bondage. As stated in Bhagavad Gita, Prajahati yada kaman sarvan parth manogatam. कहाँ है श्लोक कहाँ से? स्थित प्रज्ञ में. तो स्थित प्रज्ञ की क्या परिभाषा है यहाँ क्यों दिया है प्रभुपाद ने? So sthit pragya are those, sthit pragya का मतलब the one whose intelligence is fixed. Fixed on what? अच्छा, sthit pragya, fixed intelligence. Fixed on what? On the one self, if he is a jnani, and on the Krishna if he is a devotee. अच्छा, इंटेलिजेंट फिक्स्ड ऑन कृष्णा या भगवत गीता में कृष्ण आगे क्या कहते हैं? मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय.
मयि बुद्धिम निवेशय. What is the meaning of मयि बुद्धिम निवेशय? My intelligence upon me. मयि बुद्धिम निवेशय. मयि मुझको बुद्धिम बुद्धि में निवेशय किसको कहते हैं? निवास स्थान, मुझे अपनी बुद्धि में बिठाओ. जैसे अर्जुन ने कृष्ण को सारथी के जगह पे बिठाया, सारथी बुद्धि है, उसमें भगवान को बिठाना. अब अर्जुन स्वतंत्र रहा क्या? वो पीछे बैठा है लेकिन चलाएगा भगवान ना. तो ये है वास्तव में लिबरेटेड सोल भी स्वतंत्र नहीं है. बुद्धि में भगवान को बिठाओ और मन भगवान के हाथ में दे दो. मई बुद्धि मई मन आधस्व का मतलब क्या है? आपका मन मेरे पास फिक्स डिपॉजिट में रखो. आधस्व कहते हैं डिपॉजिट रखने को, क्योंकि तुमसे संभाला नहीं जा रहा है. तुमको ये बार बार जन्म जन्म के चक्कर में भटका रहा है, तो इसलिए मेरे पास रखो. जैसे अर्जुन ने भगवान को अपने घोड़े की लगाम दे दी, इसका मतलब मन भगवान को दे दिया और भगवान को बुद्धि में बिठा दिया. तो ऐसा जिसने किया वो तो है सेफ, और जो स्वतंत्र रहेगा वो हमेशा दुख भोगेगा. चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, Why do you lament for material existence since it is worthless? As long as Jiva experience life in terms of his body, Prithiktvin, separate from soul, which possesses the strength of the Lord. Kon, Lord's Maya, body is made of Lord's Maya. As sense objects, material existence, though useless and insubstantial, will not be destroyed. Material existence give a multiple of grief, dukkha nivaham, and gives results for all actions. Last verse of this section. Last verse of this section. 10. Ahane aprataratah karana nisha nihashyana nana manorathiya kshanabhanga nidra दैव हत अर्थ रचना ऋष्योपि देव युष्मत् प्रसंग विमुखा इह संश्रुति. अब इस श्लोक में श्रील प्रभुपाद ने 3 शब्द निकाले इस श्लोक के संस्कृत, उनके ऊपर पढ़ लिखा एक एक करके. आइए पहले देखें. सच नॉन डिवोटीज engage their senses in very troublesome and excessive work, and they suffer insomnia at night because of their intelligence constantly break their sleep with various mental speculations. They are frustrated in all their various plans by supernatural power. Even great sages, if they are against such transcendental topics, must rotate in the material world. Even such sages. कौन sages हैं? Oh Lord, the Gyanis having disturbed senses, Gyanis. Engage them during the day and sleeping in night, have their sleep broken by various desires represented in dreams, and thus obtain object of enjoyment by karma. They continue to be reborn in this material world
since they are averse to your association. Srila Prabhupada's purport is quite lengthy, it's more than 2 pages, so we should go step by step. Okay. First, Prabhupada is giving his purport on the word aparita arat karna. कर्ण का मतलब क्या है? सेंसेस. अपरिआर्थ कर्ण मीन्स क्या? देखो वर्ड टू वर्ड में देखो. हाँ, अपरिआर्थ कर्ण, अनकंट्रोल सेंसेस होना चाहिए. नहीं, क्या है? डिस्ट्रेस, आरत, आप्रत एंगेज, आप्रत एंगेज, आरत डिस्ट्रेस्ड, कर्णः सेंसेस. Senses are engaged in distress engagement. इसका अर्थ क्या होगा? अब आप समझिए कि हमारी इंद्रियां परेशानी वाले काम में लगी है. कौन सा परेशानी वाला काम है प्रभुपाद जी के शब्दों में? ए फैक्ट्री. ये प्रभुपाद लिखेंगे फैक्ट्री, देखना. फैक्ट्री इज द नेक्स्ट नेम फॉर हेल. अब ये शब्द आपको थोड़ा क्लियर हो जाए कि आरत कर्ण इंद्रियां परेशानी वाले काम में लगी हुई हैं. As described in the previous verse, people who have no taste for devotional service of the Lord are occupied in material engagement. Most of them engage during the daytime in hard physical labor. Their senses are engaged in very extensively in troublesome duties in the gigantic plant of heavy industrial enterprise. The owner of such factories are engaged in finding market for their industrial products, and the laborers are engaged in extensive production involving huge mechanical arrangement. Factory is another name for hell. ये है आरत कर्ण engagement. At night, hellishly engaged person take advantage of woman and wine to satisfy their tired senses, but they are not even able to have sound sleep because their various mental speculative plans constantly interrupt their sleep. Because they suffer from insomnia, sometimes they feel sleepy in morning for lack of sufficient rest. ये इनका हाल है. कोई कहानी इसके ऊपर आपको याद आती है? रात को नींद खराब होती है, जागते हैं, स्वप्न देखते हैं. कोई कहानी याद है? ब्रह्मचारियों के लिए अच्छी कहानी याद है कोई? हाँ, नहीं, उसकी नहीं, सामान्य कहानी है. वो सोच रहा था मैं बस अब थोड़ा कमा लूंगा. पॉट मेकर वो डे ड्रीम कर रहे थे. पॉट्स बना दूंगा मैं, ज्यादा पॉट्स बनाऊंगा, पॉट को बेच दूंगा, पैसा लाऊंगा. ऐसे चलो आगे चलो. फिर क्या करूंगा? एक पॉट है, बंगा सब कुछ कर दूंगा करके, बट रात को ऐसे स्वप्न. कहाँ की सोच कहाँ रहा जहाँ सोया हुआ? सपने में एक कथा ऐसी है. वो ट्रेवलर था, बहुत मेहनत करके कमाने के लिए जा रहा था. एक वेल के पास में रात को सोया हुआ था. वो सारा रास्ते में तो सोचता आया ये पैसा मैंने कमाया, अब घर जाऊंगा, पहुंचूंगा, उधर जाके इसकी गाय लूंगा, फिर गाय के लिए पत्नी लाऊंगा, अब पत्नी लाऊंगा, फिर पत्नी आके मेरे पास में कहेगी थोड़ा हटो, जगह नहीं है. और उस वक्त हटा तो सीधा कुएं में गिरा. तो कुएं के पास जो सोया हुआ था ना, स्वप्न में हटा और कुएं में गिरा, सीधा बोइल में गया. तो ये स्वप्न भी कुएं में गिराने वाला है. ये जो थोड़ा किसको ऐसे कहा ना, तो समझने किसे करना था, सीधा कुएं. तो ये है कि नींद में सोए भी नींद उसकी खराब होती है. ये कैसी कथा. अब दूसरा शब्द आ रहा है. अर्थकरण वाला पूरा हो गया. दैव
ahat arth rachna, daivahat arth rachna. By the arrangement of supernatural power, even the great scientist and thinker of the world suffer frustration for their various plans and thus wrought in the material world birth after birth. इसका शब्द अर्थ देखो ऊपर, दैव अर्थ, हाँ, देवाहत अर्थ रचना. Superhuman frustrated plants, huh? By superior nature, by supernatural power, their plants are frustrated. इसके लिए कौन सा एक सेइंग अंग्रेजी में नॉर्मली, मैन प्रपोज गॉड डिस्पोज, प्रभुपाद इसको लिखते हैं. अब आगे पढ़ते हैं, इसमें क्या है. A great scientist may make discoveries in atomic energy for the quick destruction of the world and may be awarded the best prize in the recognition of his service or disservice. But he also has to undergo the reaction of his work by rotating in the cycle of repeated birth and death under the superhuman laws of material nature. All these people who are against the principle of devotional service are destined to rotate in the material nature without fail, material world without fail. This verse particularly mentioned that even sages who are averse to the principle of devotional service to the Lord are also condemned to undergo the trump of material existence. Not only in this age, but formerly also, there were many sages who tried to invent their own system of religion without referring to the devotional service to the Lord. But there cannot be any religious principle without devotional service to the Lord. अब ये एग्जाम्पल कोई आपको आते हैं क्या? आगे पढ़े उससे पहले कौन से सेज थे जिन्होंने अपने अपने रास्ते निकाले और वो भी फ्रस्ट्रेट हो गए? क्या किया बेचारे ने? त्रिशकों को स्वर्ग भेजने का प्रयास किया और स्वर्ग से वापस लटक रहा था. फिर विश्वामित्र ने अपने योग शक्ति से स्वर्ग भी एक बना लिया, लेकिन त्रिशक को अभी तक परेशान है. ऐसे कोई और प्रभुपाद ने लिखा है, उनके मन में कुछ होंगे, लिखे नहीं यहाँ. Many sages who try to invent their own system of religion. सड़ गोस्वामी का तो वो तो सठ दर्शन, सठ दर्शन, सठ दर्शन are not pure philosophy, but this is a philosophy. उसमें वेदांत तो व्यासदेव का भी है. नाम किसी का नाम नहीं लेना है हमको, एक प्रिंसिपल की बात करेंगे, नॉट पर्सन्स, प्रिंसिपल. अपना रिलीजन बनाने का प्रयास किया. जैनिज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म ये सब एक दृष्टि से नास्तिक है. आप इसको और कहीं ना जाके सिर्फ प्रभुपाद के प्रणाम मंत्र पढ़ के आप निकाल लो निर्विशेष व शून्यवादी. जो निर्विशेष शून्यवादी वो हैं जिन्होंने अपना अपना नम्मत निकाला है और उन सबसे प्रभुपाद ने सबको बचाया है. तो और कहीं नहीं. प्रभुपाद जब ये लिख रहे हैं, पता नहीं निर्विशेष शून्यवादी हो उसके दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि उनका प्रचार सारा इसी दृष्टिकोण से था. फॉल्स कमेंटेटर ऑफ भगवत गीता वो किस में आएंगे? निर्विशेषवादी और शून्यवादी में आएंगे. निर्विशेषवादी में आएंगे. पर जब ऐसे पढ़ें तब दिमाग थोड़ा घुमाना चाहिए घोड़े को कि क्या, कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है, आखिर क्या है. लिखा है तो कुछ तो प्रभुपाद जी के मन में होगा तब ये लिखा है. अब प्रभुपाद जी आगे क्या कह रहे हैं? The Supreme Lord is the leader of the entire range of living entities, and no one can be equal to or greater than him. Even the Lord's impersonal feature and all-pervading localized power cannot be an equal level with the Supreme Personality of Godhead. ऐसे कह के प्रभुपाद जी क्या कहना चाहते हैं? ज्ञानीज और योगी
भाई इम्पर्सनल कौन ध्यान करते हैं? ज्ञानी। और परमात्मा कौन करते हैं? योगी। इसका मतलब वो भी अपना रास्ता निकाल के बैठे, भगवान को वो भी भूल के बैठे। ये क्यों लिखा है ये कंटिन्यूसी में? Therefore, there cannot be any religion or system of genuine philosophy for the advancement of living entities without the philosophy, devotional service. ये हो गया देव हत रचना. Everything is frustrated by the supernatural power for all the philosophers or even big jnanis and yogis and everybody. Now, Nana Manorath Dhiya, third word of the verse. Nana Manorath Dhiya. Dhiya means intelligence. The impersonalists who take much trouble and penance and austerity for self-realization may approach the impersonal Brahma Jyoti, but ultimately, because of not having situated in devotional service, they glide down again to the material world to undergo another trump, as confirmed in Ye Anya Aravindaksha Vimokta Manina Krachena Palma Padam Padhaur Aravinda Yushma Tangri. A second canto or say 10th canto second chapter की verse है, ठीक है? Now therefore no one can manufacture any system of religion. ये तो प्रभुपाद ने वहाँ नाम नहीं लिया था, यहाँ ज्ञानियों को बता दिया, तो ये दोनों ज्ञानी योगी सब आ जाएंगे. अब दूसरी दृष्टि से इसको देखो. एक चैतन्य चैतन्य के श्लोक से इस परपट को देखो. भोक्ति मुक्ति सिद्धि सकल अशांत कृष्ण भक्त निष्काम अतैव शांत. अब इसको सब इसमें बिठा सकते हैं इसमें कि नहीं? ये सारे भुक्ति मुक्ति सिद्धि वाले ही है ना, जो चक्कर लगाते रहेंगे क्योंकि उनकी इच्छा है और केवल कृष्ण भक्त है, शांत है. तो ये श्लोक भी इस दृष्टि से इस परपट में आ सकता है. इसका प्रभुपाद लिखा नहीं लेकिन भाव ये. अब प्रभुपाद लिखते हैं रिलीजन कैन बी ओनली वन. देयर नो वन मैन्युफैक्चर द सिस्टम ऑफ रिलीजन. We find in 6th canto of Srimad Bhagvatam, the initiator of the religion, the principal Lord himself. In Bhagavad Gita, find the Lord condemn all form of religion. ये कहाँ है? Lord condemn all form of religion that enter सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज. ये भागवत में है ना, भगवत गीता की बात कर रहे हैं. भगवत गीता the 6th chapter में कौन से श्लोक है यहाँ दिए हुए हैं? धर्मातु साक्षात भगवत परिणितम. और कोई नहीं देख सकता है, देवता नहीं दे सकता, गंधर्व नहीं दे सकता, और धर्म को 12 महाजन जानते हैं, वो भी नाम लिखा पड़ा है. स्वयंभू नारदो ये शंभू ये पढ़े हैं. So the principle of religions are initiated by the Supreme Person of Godhead, and no one else, including the sages and demigods, can manufacture any such principle, since even great sages and demigods are unauthorized to inaugurate such principle of religion. What to speak of others? The so-called mystic, demons, human beings, vidyadhars, and charanas living in the lower planets, what they can do? No. 12 Mahapersonalities, Brahma, Narad, Shiva, Kumar, Kapil, Manu, Prahlad, Janak, Bhisham, Bali, Sukdev, and Yamaraj are agents of the Lord, authorized to speak and propagate the principle of religion. The principle of religion are not open to any ordinary living entity. They are just to bring the human being onto the platform of morality, non-violence, etc. They are necessary for misguided persons because unless one is moral and non-violent, one cannot understand the principle of religion. अब ये प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं, जरा पढ़िए, थोड़ा ध्यान से पढ़िए, बताइए.
सारे जो जनरल रिलीजन है ना, मॉरलिटी की बात करते हैं, मॉरलिटी, नॉन वायलेंस। बुद्ध नॉन वायलेंस की बात करते हैं और कुछ लोग मॉरलिटी की बात करते हैं, ऑनेस्टी ये वो। लेकिन ये रिलीजन नहीं है। मॉरलिटी और नॉन वायलेंस करने वाला आगे बढ़ेगा तब रिलीजियस को समझ में पाएगा। तो दिस इज नॉट रिलीजन, दिस इज द stepping stone for somebody to come to the level of religion. To understand what is actually religion is very difficult, even if one is situated in principle of morality and non-violence. It is very confidential because as soon as one is conversant with the real principle of religion, he is at once liberated to the eternal life of bliss and knowledge. Therefore, one who is not situated in the principle of devotional service to the Lord should not pose himself as a religious leader of the innocent public. Isha Upanishad emphatically forbids andham tamha pravishyanti asambhutim upasate anto bhuya evacha तमोहि संभूतयाम तथा। असंभूति और संभूति का यहाँ अर्थ क्या था? वो यहाँ ए पर्सन इन इग्नोरेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ रिलीजन हु देयरफॉर डज नॉट नथिंग इन द मैटर ऑफ रिलीजन इज फार बेटर देन पर्सन हु मिसगाइड द अदर्स। नहीं समझ में आया तो अच्छा है, लेकिन दूसरों को गलत रास्ते पे ले जाए वो खराब है। तो ऐसे बहुत से लोग हैं। चक्रवर्ती पाद क्या लिखा है देखो, one should not say that the material existence caused by ignorance will be destroyed by ज्ञान। ज्ञान से ignorance नहीं जाएगा, because even ज्ञान is devoid of bhakti continue in material world. Sages described in this verse averse to your association continue in this material world. Sometime Munya is seen instead of Rishya. What type of sages are these? They have disturbed senses, arata karanaha. Engaged during the day, they are enjoying objects, artha rachana, bestowed to them by karma. Three types of person trapped in the material world are described. Karmis, adapted to the sin described in verse number 7. Fools bewildered by the hunger and thirst in verse number 10, and the Gyanis in this verse. तो ये इन वर्ष में क्या लिखा है, कौन है, कहाँ देखो। फूल्स कहाँ है? वर्ष नंबर 8 में। 7 में कौन है? कर्मीस। और इस वर्ष में ज्ञानी है। ये एक और दृष्टिकोण है चक्रवर्ती पाद के साथ साथ चलने से। ये फुल हो गया है, इसको कोई अपने कंप्यूटर में डाल के खाली कर देगा, फिर मैं हार्ड डिस्क दूंगा, उसमें डाल देना। ये ऑडियो है MP3, इसको खाली कर दीजिए, ठीक है। लगा तो इसमें खाली हो जाए, तब तक हम खत्म करने वाले 3 बज रहे हैं। अब ये कौन से वर्ष में कौन सा ये हमने देख लिया। अब एक नज़र हम आपको, ये आपके पास ये सब होगा, मैं क्या आपको दिखाऊं? ये डॉक्यूमेंट नहीं होगा। हाँ, ये डॉक्यूमेंट हमारे पास नहीं है। मैं आपको, ये आपके पास ये होगा ना जो मैं दिखाने जा रहा हूँ। ये देखो, ये है। कुछ वक्तों के पास एक शब्द में क्या है देखो, एक शब्द में क्या है। ये 5 श्लोक जो है, इसमें पहले में क्या है? पहला क्या है श्लोक देखो, 5 वर्सेस में। नंबर 1, सुप्रीम नोएबल ऑब्जेक्ट इज लॉर्ड। दूसरे में, ओरिजिन ऑफ ऑल अवतार। तीसरे में, सुप्रीम पर्सनल फॉर्म एज कंपेयर टू ब्रह्म। ब्रह्म नहीं चाहिए, वो तो नहीं दे सकता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष रिलेट नहीं कर सकता है।
मैंने देखा भी नहीं, मैंने ध्यान में आपको देखा, ब्रह्म कहाँ है मुझे मालूम नहीं, ब्रह्मा यही कह रहा है। और फिर क्या है? मोस्ट ऑस्पिशियस, मंगलाय। और लास्ट क्या है? ज्वेलर इन द डिवोटीज हार्ट। कानों के द्वारा जो कथा सुनते हैं उनके हृदय में आ जाता है भगवान भक्तों के संग से। अब दूसरे हमने पढ़े थे, ये श्लोक पढ़े अच्छे, इसमें क्या लिखा है देखो। पहले में क्या है? मिस आइडेंटिफिकेशन काजेज एंग्जाइटी। इसका मतलब श्लोक क्या है? पढ़ो, क्या शब्द है? तावत का। इसमें हमने इसको कहा था कि अनर्थ निवृत्ति, और अनर्थ निवृत्ति से पहला स्टेज, उसको ये लिखा। दूसरे में क्या, साथ को क्या है? अनफॉर्चुनेट पीपल डू नॉट केयर हियर। ये कौन सा 7 नंबर क्या था? कर्मीज। और 8 नंबर में क्या है? बिकॉज ऑफ फूलिशनेस दे आर फूल्स। और 9 में व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन? बाइंड्स एवरीबॉडी। और इसमें हमने मेरे ख्याल में ये तात्पर्य 3-4 शब्द जो थे मनोरथ रही। और लास्ट में फ्रस्ट्रेशन ऑफ नॉन डिवोटीज, ज्ञानी, अरविंदाक्ष, मानिना। ये हमारे 10 श्लोक हो गए। अब 3 श्लोक में हाउ लॉर्ड रेसिप्रोकेट विद हिज डिवोटीज। तो कल हम यहाँ से 11 से शुरू करेंगे। अब 3 बज रहे हैं, आपको छुट्टी दें? नहीं, chapter title is this: Brahma's prayers for creative impetus. Is he exactly praying? हाँ? Is he exactly praying? तो 25 श्लोक प्रेयर के पूरे भगवान को पहले कर। अब ये पहले प्रेयर करके भगवान की महिमा गा के फिर कहेंगे मुझे क्यों पैदा किया है, मुझे क्या करना है, अब बताओ कृपा करके। तो जब अपना काम पड़ता है तो पहले तो प्रार्थना करेगा ना, पहले प्रार्थना चल रही है, फिर अपनी मजबूरी बताएगा। प्रेयर का रूल ये है, इफ यू हैव एनीथिंग टू आस्क फ्रॉम गॉड, फर्स्ट यू ग्लोरीफाई हिम, देन पुट योर प्रेयर। तो ये ब्रह्मा के 25 श्लोक प्रेयर के हैं। तो ये 1 वर्ड वाला है, ये सब ड्रामा है, आप देख सकते हैं। अपन यहाँ पहुँच गए हैं, आप नहीं थके हैं तो हम आगे बढ़ सकते हैं। थक गए हैं तो जाओ आराम करो, आज कल तैयार हो के आना। कहाँ पहुँच गए हम? यहाँ पूरा The Lord's reciprocation with various devotees, 11, 12 and 13. त्वं भक्ति योग परिभावित हृत सरोजा, आसे सुरेत इक्षः पथो ननुनाथ पुंसा, यद्यद्धिया तद् अनु उरुगाय विभायन्ति, तत्तद्वपुः प्रणयत अनुग्रहाय। श्रुत इक्षित, इस शब्द को ध्यान से देखो क्या इसका अर्थ है। श्रुत अक्षित, ये आपके जीवन में हमेशा याद रहने के लिए। भगवान को कान से देखा जाता है, आंख से नहीं। श्रुत इक्षित, सुनने से देखो, कान देखने के लिए है, ये मुख्य वर्ड है। त्वं भक्ति योग परिभावित हृदय सरोज, हृदय का कमल। आसे आके बैठ जाते हैं, आसे का मतलब आके आसते बैठ जाते हैं।
श्रुत इक्षितम पथो ननु नाथ पुंसाम, जो कान के द्वारा सुनते हैं उनके हृदय में आ जाए। यद्यद धिया अनु उर्गाय विभावती, जैसी बुद्धि में उनने जैसा जैसा भाव के प्रति किया है उसी भाव में उर्गाय आपका, जैसे जैसे उत्तम श्लोक है वैसे उर्गाय है। उत्तम श्लोक और उर्गाय दोनों का अर्थ एक है। देखो वर्ड टू वर्ड में क्या है उर्गाय? ओ मल्टी ग्लोरियस, ए ग्लोरीफाइड बाय वैदिक लिटरेचर, इसका उर्गाय है, जिसके बारे में गान किया जाए। तत्त वपुः प्रणय सद अनुग्रह, आप उसके सामने उसी रूप में प्रकट हो जाते हैं। Oh my Lord, your devotees can see you through the ears by the process of bona fide hearing, and thus their hearts become cleansed and you take your seat there. बहुत अच्छी बात है। You are so merciful to your devotees that you manifest yourself in the particular eternal form of transcendence in which they always think of you. क्लींस ब्लिंस कुछ लिखा पड़ा है इसके ऊपर, कोई वर्ष याद आते हैं आपको भागवत से? कहीं से भी चलो। Devotees hear, clean their heart, देखा है? श्रोतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयांतस्थो भद्राणि धुनोति, धुनोति धोलेगा भगवान अपने भक्तों का। और कोई श्लोक? ओम अज्ञान जमतमा नास्यामि भात विस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। और तम तम धुनोति भगवान सबके सेकंड कैंटो। और एक बहुत सबको आता है पहला श्लोक शिक्षा अष्टकम का, और एक श्लोक बहुत अच्छा है, वो है दूसरे स्कंद के 8वें अध्याय में होना चाहिए, चौथा पांचवा, मेरे ख्याल में 8वें में है, 8वें में चौथा पांचवा होना चाहिए। हाँ, शृण्वतां श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन अति दीर्घेण भगवान विशते हृदय प्रवेष्ट कर्णरंध्राणां श्रवण सरोरुहं धुनोति समलम कृष्ण यथा सत। ये श्लोक एग्जैक्टली इस लाइन में है। देखो, जो कान से ध्यान से सुनेगा भगवान प्रवेश करके हृदय को कृष्ण बैठ के धोएंगे, समलम कृष्ण। ये एक श्लोक देखते, कुछ शब्द देख के आपको दिमाग ऐसे काम करना चाहिए। ये आप एक दिमाग में सॉफ्टवेयर फिट करो, आप कर सकते हैं। आप यूज, Prabhupada used to take one word and he immediately find the verse which is similar word from Bhagavad Gita and then he quote there. Prabhupada के परपट को आप देखें, इस तरीके लिखा होगा। So ये आपके स्टडी का एक उद्देश्य है। अब देखिए चक्रवर्ती पाद क्या लिखा है? O you, O Lord, you who are approached by being heard about, seen and directly served। तीन बातें लिखी है, heard, seen and served। श्रोत को लिखा है heard, इक्षकत को लिखा है seen और served। तीन चीजें लिखी है। Enter and remain in the lotus of your devotee's heart, infused with bhakti yoga। Much praise Lord Urugaya, by your mercy Anugraya, you bestow to them spiritual bodies appropriate to the mood they cultivate during sadhan। अब देखो दूसरा पर्पट, दोनों के ट्रांसलेशन में अंतर है आचार्यों की। प्रभुपाद कहते हैं अगर मानो मैंने नरसिंह देव का ध्यान किया तो नरसिंह देव के रूप में आ गए, एक दृष्टि ये है। दूसरा ये है, मैंने अगर वात्सल्य भाव से किया तो वो छोटे लाला कृष्ण बन के आ गए। उसमें क्या है, भगवान उस रूप में आते हैं। और चक्रवर्ती पाद क्या कहते हैं, साधन में मैं अगर साधन किया था भक्त दास्य भक्त का, तो मुझे दास्य का स्वरूप मिलेगा भगवान के धाम में। अगर मैंने सखा का है तो सखा का स्वरूप मिलेगा। देन स्पिरिचुअल बॉडीज
bestow to them spiritual bodies, मतलब साधक को देंगे when his साधना is over। तो इसका मतलब दोनों हम इसके अर्थ ले सकते हैं, और ये अर्थ ज्यादा प्रैक्टिकल है कि हमको स्पिरिचुअल बॉडी में जाना है। भगवान के तो नित्य है, कभी किसी के सामने कोई भी फॉर्म जिसमें हम ध्यान करेंगे आ सकते हैं, लेकिन ये भाव ड्वेलर ऑफ द डिवोटीज प्रभुपाद तात्पर्य, और यहाँ भी प्रभुपाद 2-3 भाग में इसका कर रहे हैं। द स्टेटमेंट हियर that the Lord manifests himself before the devotees in the form in which the devotee like to worship him indicate that Lord become subordinate to the desire of the devotee। प्रभुपाद के तात्पर्य में भगवान अपने भक्त का अधीन हो जाते हैं। तब कौन सा श्लोक याद आएगा? अहम भक्त पराधीनो, अहम भक्त पराधीनो। लेकिन कौन से स्तर का भक्त होना चाहिए? आगे पढ़ो। So much so that he manifests his particular form as the devotee demands। हरे कृष्णा, क्या सर्दी से भाग रहे हो? हरे कृष्णा। कौन से भक्त के लिए भगवान subordinate to the desire of the devotee? हम भक्त पराधीन हो, ये तो एक स्टेटमेंट भगवान की अपनी है। और दूसरा भाव भक्ति के लिए लिखा है सुदुर्लभा। क्यों भाव भक्ति सुदुर्लभा? क्यों सुदुर्लभा है? खाली हो गया, ठीक है। ये इनसे बाद में मेरा हार्ड डिस्क ले लेना। हाँ, सुदुर्लभा क्यों है जी? हरे कृष्णा। because once Lord gives somebody bhav bhakti, then he become controlled by that devotee। इसका मतलब ये कम से कम कौन से डिवोटी के लिए है? जो भाव भक्ति के स्तर के ऊपर है उसके लिए प्रकट होते हैं, सबके लिए नहीं। इसको और सरल भाषा में अपने जीवन में आप प्रैक्टिकल लाइफ में कहें तो, भाई मेरे मंदिर में मुझे जो भगवान का विग्रह स्थापन करना है मैं कर लूंगा। ये सबसे आसान नहीं है भाई। हमारे में कृष्ण बलराम को नहीं मैं सीताराम कर लो सीताराम। ये एक बहुत इसका साधारणीकरण ये भी हो सकता है ना भाई। हम जिस रूप में भगवान की पूजा करना चाहते हैं उस विग्रह को स्थापन कर सकते हैं। ये इसका प्रकृति हमारे सामने वो भगवान तो नहीं आएंगे पक्का ना, तो ये तो विग्रह हम अपनी इच्छा से कर सकते हैं ना। ये भाव ही है, ये भी एक भाव है कि भाई भगवान उस विग्रह में हम स्थापन कर सकते हैं कि नहीं। ये इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ये भी तो हो सकती है ना। तो हम 11वां श्लोक जो पढ़ रहे हैं इसमें भगवान भक्त के अधीन हो जाते हैं, भगवान पराधीन हो जाते हैं। पराधीन का मतलब प्रकृष्टेन रूपेण अधीन है। अब प्रभुपाद कहते हैं इसका फिलॉसफी कौन सी है? ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजामि। अब त्वम भक्ति योग परिभाविता, इसकी परिभाषा प्रभुपाद जी करते हैं। This indicates the efficiency achieved through execution of mature devotional service of prema। mature devotional प्रेम भक्ति की बात है। ये प्रेम भक्ति के स्तर के ऊपर संभव है। This state of प्रेम is achieved by the gradual process of development। अब प्रभुपाद जी लिखे क्या लिख रहे हैं ये आप सब समझे। एक बार इसको देख के बताओ क्या लिखा है। आदव श्रद्धा अथ साधु संग, ये पूरा स्टेज लिखे हुए, ठीक है। भजन क्रिया वो लिखा हुआ है। अब श्रोत इक्षत क्या लिखा है देखो। The श्रोत इक्षत path is to hear from bona fide devotee who are conversant with Vedic wisdom, free from mundane sentiments,
ये भी एक्चुअली श्लोक है भागवत का। ब्रह्मनिष्ठ एंड ब्रह्मश्रोत्री एंड ब्रह्मनिष्ठ, ये जो श्लोक एक है ना 11वें स्कंद में, उसका भाव है कन्वर्सेशन विद वैदिक विजडम मीन्स ब्रह्मनिष्ठ। ब्रह्म कहते हैं वेदा को, वेद को, जो वेद में निष्ठ है। ये है मेरे ख्याल में आचार्य दूसरे 11वें स्कंद के मेरे ख्याल में दूसरे अध्याय का श्लोक होगा। आपको आता है ये श्लोक, याद है किसको? तस्माद् गुरु प्रपद्येत ब्रह्म, हाँ, ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मश्रोत्र, जिसने वेद को सुना है। और उसमें ये नेगेटिव भी उसमें है कि जो भौतिक प्रवृत्ति में नहीं है, वो भी लिखा है उसमें। इसका अर्थ है कि वन प्रभुपाद इज राइटिंग समथिंग, इज राइटिंग ऑथेंटिक वर्सेस ऑफ द स्क्रिप्चर। अपने मन से कुछ नहीं लिख रहे, स्पेशल लिखा, लिख दिया। This by this bona fide hearing process, the neophyte devotee become cleansed of all material rubbish, and thus he become attached to one of the many transcendental forms of the Lord, as described in the Vedas. This attachment of the devotee to particular form of the Lord is due to natural inclination. Each and every living entity is originally attached to the particular type of transcendental service. देखो ये फार्म नहीं है, यहाँ सर्विस है। ऊपर फार्म लिखा है, यहाँ सर्विस है, जरा ध्यान देना। ये क्या है? Eternally attached, originally attached to the particular type of transcendental service. Eternally, even living entity is originally attached to a particular type of transcendental service to the Lord. He is eternally the servitor of the Lord. जीवेर स्वरूप कृष्ण में, इसका मतलब हमारा नित्य दास का स्वरूप है। ये बात तो ठीक है। Therefore, every living entity has a particular type of service relationship with the Lord eternally. This particular attachment is invoked by the practice of regulative devotional service to the Lord, and thus the devotee become attached to the eternal form of Lord, exactly like one who is already eternally attached. This attachment is of a particular form of the Lord is called स्वरूप सिद्धि। ये स्वरूप सिद्धि जीव की होती है, भगवान की नहीं होती है ना। इसको आप ठीक तरह समझना इसको, कि स्वरूप सिद्धि का मतलब द लिविंग एंटिटीज नोज दैट आई एम एटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्णा। मुझे अपने स्वरूप की बोध हो गया। ये स्वरूप सिद्धि का स्तर याद है किसी को? कहाँ से शुरू होता है? मैं नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन से पूछ रहा हूँ। भक्ति विनोद ठाकुर का परपट पूछ रहा हूँ। श्रवण दशा, वर्ण दशा, फिर सुमरण दशा, उसके 5 अंग हैं। उसके बाद आपत्ति दशा, प्राप्ति दशा, लास्ट इज वो आपत्ति दशा स्वरूप की है। शुरू श्रवण से करना है, फिर वर्ण करना है, फिर सुमरण करना है। और सुमरण के भी स्टेज है 5। ये दूसरी बात मैं आपको कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि जब आप पढ़ रहे हैं तो ये जो पहले पढ़ा है वो भी आपके साथ साथ चलना चाहिए कि स्वरूप सिद्धि क्या है। इसको स्वरूप कहते हैं, स्वरूप सिद्धि कहते हैं। स्वरूप सिद्धि जीव की अपनी होती है। मैं हाथी हूं कि घोड़ा हूं भगवान के धाम में, ये स्वरूप सिद्धि नहीं है। स्वरूप सिद्धि ये कि मैं भगवान का नित्य दास हूं। अब कौन से भगवान का मैं नित्य दास हूं? श्री कृष्ण का नित्य दास हूं, ये मैं जानता हूं। लेकिन मैं राम का भक्त हूं हनुमान की तरह, तो राम के रूप में भगवान प्रकट होंगे। एक तो ये दृष्टिकोण है इसका, दिस इज वन एंगल ऑफ परपट। दूसरी एंगल ये है परपट की कि भगवान इतने दयालु हैं कि मेरे स्वरूप के अनुरूप मुझे शरीर देंगे, मुझे सखा का
सेवा करना है तो सखा का शरीर देंगे, और माधुर्य सेवा है तो माधुर्य सेवा का शरीर देंगे। तो मेरे स्वरूप को भी भगवान अनुग्रह करके देंगे जिससे मैं भगवान की सेवा करूंगा। ये दोनों एंगल को से एक्सेप्टेबल है, ठीक है। अब स्वरूप सिद्धि कहते हैं इसको। द लॉर्ड सिट ऑन द लोटस हार्ट ऑफ ए डिवोटी इन द इटर्नल फॉर्म द प्योर डिवोटी डिजायर्स, and thus the Lord does not part from the devotee as confirmed in the previous verse. The Lord, however, does not disclose himself to a casual, unauthentic worshipper to be exploited. This is confirmed in Bhagavad Gita, Nam Prakashati Sarvasya, Yoga Maya. Rather, by Yoga Maya, the Lord remains concealed to the non-devotees and casual devotees who are serving their sense gratification. The Lord is never visible to pseudo-devotees who worship the demigods in charge of universal affairs. Conclusion is that Lord cannot become the order supplier of the pseudo-devotees. But He is always prepared to respond to the desire of the pure unconditional devotee who is free from all tinge of material infection. Chakravarti Pad writes, Bhakti even without Gyan will deliver one from the material existence. But more than that, by Bhakti the Lord becomes dependent on the devotee. Bhavita means infused with. Amar Kosh says Bhavita means infused in all three genders. He sits in the lotus in the devotee's heart, infused completely, pari, with bhakti, yoga. Or the phrase can mean in the devotee's hearts manifested by bhakti yoga. Bhavita is the past participate form. Bhakti yoga is the cause of laws manifesting himself. You enter the heart of devotees and remain there, or say. You do not leave. This is confirmed by the verse 5. Now paishina tahirdayam bura swapunsham. ये पहले हम पढ़ के आए, verse number 5. Your path is first being heard from the mouth of a guru, then seen, and then directly served. ऊपर दोबारा सुनना, देखना और सेवा करना। भगवद गीता में कोई ऐसा श्लोक है क्या? तन विधि वाला नहीं सुन रहे, दूसरा कोई श्लोक जिसमें देखना, सुनना और सेवा की जगह और शब्द है। 11वें अध्याय में, इतना मैं आपको हिंट देता हूं। हाँ, ये श्लोक है, बोलिए। ज्ञातुम दृष्टुम प्रवेष्टुम परं तपा। ज्ञातुम जानना, दृष्टुम देखना, प्रवेष्टुम सेवा में लगना, प्रवेश करना। ये गीता के 11वें अध्याय का श्लोक है। एवं अर्जुन, ये 51-52 श्लोक होगा, 52 54 है, इतना जल्दी। लास्ट वर्ड 1 है क्या? नहीं, 51-2 में होना चाहिए। कहाँ है जी? भक्त्या तो अनन्य शक्य अहम वेदो एवं विदो अर्जुन ज्ञातुम दृष्टि प्रवेशम जो परंतु। कौन सा नंबर है? 54। तो 55 दी एंड है। तो इसका मतलब ऐसे हो सकता है ना, भगवान को देखा जा सकता है, सुना जा सकता है, देखा जा सकता है और सेवा में लगा जा सकता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। Your path is first being heard about from the mouth of a guru, then seen, and then directly served. इसको एक और फिलॉसफी में आप ट्रांसलेट करना चाहें तो कैसे करेंगे? संबंध, अभिधेय, प्रयोजन,
हो जाएगा कि नहीं हो, संबंध अभिधेय प्रयोजन होगा कि नहीं होगा? जानना संबंध ज्ञान और प्रोसेस सेवा करना तो अभिधेय प्रोसेस हो जाएगा। The implication is that the devotee knows the path of sadhana bhakti well. The consequent implication is that the person who desires to attain the Lord should understand this path. Even without hearing, the devotees meditate on your various forms, vapu, using their mind. You reveal pranayasya, those forms to the devotee. This is the meaning corresponding to Sridhar Swami. Are your devotees doing sadhana concentrate on their spiritual form according to their mood of love, using their mind, and you have them attain their spiritual bodies, you become dependent on your devotee. So Sridhar Swami का प्रभुपाद जी ने जो लिया तात्पर्य, वो श्रीधर स्वामी का मूड है और ये चक्रवर्ती पाद का मूड है। दोनों इज ओके, दोनों एक्सेप्टेबल है। मेरे ख्याल में वी एंड इट हियर, कल यहाँ से पढ़ेंगे। कहाँ गए श्लोक? गुम हो गया? नहीं, अदर थॉट। Yes, this text is also quoted in Adi Leela 3. Lord Brahma's appearance, personally regarded, is the knowledge of the Supreme Personal Godhead can be understood from the scripture of the Vedic description of Vedic. For example, the Brahma Santa described that in the abode of the Lord Krishna there are made of Chintamani, and Lord acting as a coward boy. Mayavadis cannot think of that. Vedic, the word Shruta in Shruta Ikshatam Pathahi refer to the Vedas, and Ikshata indicate that the way to understand the Supreme God is to proper study of Vedic scripture. One cannot imagine something about God or his form. Such imagination is not accepted by those who are serious about the enlightenment. Here the Brahma says that one can know Krishna through the path of properly understanding the Vedic text. If by studying the form, name, qualities, pastime, paraphernalia of the Supreme Personal God, one attracted to the Lord, he can execute devotional service, and the form of Lord will be impressed in his heart and remain transcendently situated there. Unless a devotee actually develops transcendental love for the Lord, it is not possible for him to think always of the Lord within his heart. Such constant thought of the Lord is the sublime perfection of the yogic process. Yoginam api sarvesham madgate antaratma, and that is called samadhi. A pure devotee who is always thinking of the Supreme Personality of Godhead is the person qualified to see Lord. Person qualified to see Lord. ये हमारा पहला क्वेश्चन था ना। यहाँ क्या लिखा है? Pure devotee is always thinking of the personality of Godhead is a person qualified to see God. ये भी एक purport है। One cannot speak of Urgaya, the Lord who is glorified by sublime prayers, unless one is transcendently situated. The Lord has innumerable forms, and as the Brahma Santa confirm Advaitam Achitam Anadim Anantarupam. और ये श्लोक है, ये श्लोक है अर्थ कही संक्षेप रसार भक्तेर इच्छाए कृष्ण सर्वावतार। भक्तेर इच्छाए कृष्ण सर्वावतार, तो भक्त की इच्छा के अनुसार कृष्ण सब अवतार लेता है। अब 12 और 13 कल पढ़ेंगे। 12 में कंपेरिजन है डेमी गॉड की और प्योर डिवोटी की, और 13 में क्या है कल देखेंगे। हरे कृष्णा। अब आपका कोई क्वेश्चन कमेंट है तो बोलिए। ये तमाम प्रपद्य में कृष्ण इसेस आई रिवार्ड एज पर दे सरेंडर टू।
in that karmic, material karmic reactions also come when sadhak. Yes, if their karmis are surrendering for karma as a, this is in the Bhagavad Gita, it says as a yajna purusha, he award them with the fruit of their karma. If Jnani wants to say you don't have farm, then he will also, yes, you should also get merging into Brahma and have no farm also, because you don't want, accept my farm, so you should not get farm. And if you want to love me and serve me, then come and serve, love and serve me. So he is reciprocated with everybody. Even sadhaka bhaktas also, bhakti yogi, one who is practicing bhakti yoga, sadhaka bhaktas also. Sadhak bhakta has, what is, why they are doing sadhak bhakti? Sadhan bhakti is to awaken the bhav bhakti. So until unless we reach to the bhav bhakti, basically there is no need for Lord to reciprocate. Only when we develop our sthai bhav, then only Lord can reciprocate according to our sthai bhav. Till that time, what Lord will do, yog kshemam vahamyam. What is the purport of yog kshemam vahamyam in Bhagavad Gita? Anybody remember? I provide what they lack. This is the meaning, purport. पूरा श्लोक पढ़िए. Whatever advancement we have made in bhakti, that will be protected, and further advancement will be provided. That is mentioned in the quote. So, श्लोक पूरा पढ़िए. अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, ये जो शब्द है इसका अर्थ है जो मेरा सानिध्य चाहता है. One who want to associate with me. Based on this, those who want to associate with me, yoga means I arrange them to come and associate with me. And khyam is that I will never allow them to separate from me. और ये पर्पट बलदेव विद्याभूषण का है जो प्रभुपाद ने ऐसे दिया है. So यहाँ when we are doing sadhana bhakti, Krishna will, because we want to associate with him, he will help us to associate with him, and he will always protect us from falling down. ये योग क्षेमम का डेफिनेशन प्रभुपाद का तात. मटेरियल भी है, पर मटेरियल को प्रभुपाद ने इम्पोर्टेंस नहीं दिया है. दोनों में भोजन भी भगवान भक्त का ला के देते हैं, वामी की वो भी परिभाषा है. तो यहाँ कृष्ण रेसिप्रोकेट अकॉर्डिंग टू दी डिवोटीज सरेंडर. So does this Eyatamam Prabhate works for the karmis also? ये भगवान, ये तो भगवान के अपने लिए है. एक कृष्ण ने माथे के ऊपर हाथा मारा कि गोपियों ने मेरे लिए घर छोड़ा, परिवार छोड़ा. मैंने कहाँ छोड़ा? ये यथामाम कह के आया, गीता मैंने पूरा ही नहीं किया. मैं जाता हूँ चैतन्य महाप्रभु बन के संन्यास लूंगा और गोपियों की तरह कृष्ण कृष्ण करूंगा. भगवान अपने लिए ये वर्ष को यूज करते हैं, तो सबके लिए करते हैं, तो अपने लिए भी करते हैं. इसके लिए we say that non-devotees they are bounded by karma bandhana. कर्म बंधन का फल कौन देता है? मेरा बाप देता है क्या? वो भी तो कृष्ण ही देगा ना भाई. कर्म का फल कौन देगा? कृष्ण देते हैं. तो फिर कर्मियों को कर्म का फल देगा, जो मांगेगा वो. ये था वाम प्रबंध देते के हिसाब से वो. But he has established a system that will Prakriti will give a reciprocate. Prakriti will reciprocate. किसकी प्रकृति? मेरी? कृष्ण की. किसी को प्रकृति के माध्यम से दिलाता है, किसी को स्वयं देता है, लेकिन दोनों करता तो भगवान ही है ना. सभी वहां तो आप उसको पर्पट को पढ़े, सभी भगवान को ढूंढ रहे हैं. वहां लिखा है प्रभुपाद ने, एवरीबडी इज सर्चिंग फॉर गॉड, बट सम आर सर्चिंग इन ए मैटर, सम आर सर्चिंग इन ए स्पिरिट. जो भी हो, तो एवरीबडी इज सर्चिंग फॉर गॉड. तो भगवान जो जिस लेवल पर है उससे साथ बात करें. भाई अगर आपका लेवल है प्राइम मिनिस्टर से डायरेक्ट बात करने का, तो कर सकते हो. नहीं तो सेक्रेटरी से बात करके काम चला लो. सेक्रेटरी भी तो प्राइम मिनिस्टर का ही है.
तो ये माया से काम चलाता है। कर्मियों का भी रेसिप्रोकेट भगवान से ही होता है, और कोई है ही नहीं बीच में भाई। जीव और भगवान के बीच में रिलेशन यही है, ये मतलब सबके लिए है। नहीं, आपका क्या विचार था? नहीं कुछ तो कर्मियों को किसके पास भेजे? यमराज के पास भेजे? क्वेश्चन में कोई इसके लिए आया था प्रभु जी। हाँ। लोग बोलते हैं कि भगवान का कोई संबंध नहीं मेरे को, I don't have any connection with God. कोई बात नहीं, पैसे से संबंध है? पूछो, पैसे से संबंध है? अरे ये लक्ष्मी है तुम्हारे बाप की है, पैसे से संबंध है ना, तो पैसा कहाँ से लाया? वो भी तो उसी का है। नहीं तो वो पैसे के रूप में भगवान को पूजता है, तो उसको भगवान उस तरीके से व्यवहार करेगा। वो दौलत मांगता है तो दो लातें मारेगा, उसमें क्या? नहीं, Here we read in Bhakti we read that Krishna, he understands material desire of a candidate and he removes the material desires and he bestows in Krishna. only for the devotees he can do that. ये परमात्मा का काम नहीं है किसी की डिजायर को इधर उधर करे। ये उपदृष्टा, अनुमानता, भरता, भोक्ता, महेश्वर, परमात्मा के रूप में सिर्फ देखता रहता है। जो करो तुम्हारी मर्जी, तुम भुगतो। भक्त होगा और भगवान के पास ध्रुव महाराज की तरफ जाएगा, बोला मेरा भक्त है, जरा गलती से इसको इच्छा हो गई, इसका हृदय पवित्र कर दो। भक्त का हृदय प्रोसेस में पवित्र करता है। सबका जो है प्रोसेस में हृदय पवित्र नहीं करता है। वो जो भक्ति नहीं है तो उसका हृदय क्या पवित्र करेगा? So for devotees he reciprocates differently, for non-devotees different reciprocates. अब इसको ऐसे समझे, डिवोटीज के लिए उसने डिवाइन एनर्जी रखी है, महात्मा ने माम पारत देवी पर, और जो नॉन डिवोटीज है देवी है इस गुणमयी माम माया रखा है। दोनों डिपार्टमेंट दोनों को दे दिया है। आप जिसके पास जाओ उससे अपना हिसाब किताब ले लो। इज ओके? हाँ जी। तो इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये आखिरी श्लोक में बोल रहे थे कि जैसा साधना के समय हमारा मूड रहता है, वैसा ही भगवान के प्रति हमारा जो है इटर्नल रिलेशन स्थापित होता है। और प्रभुपाद जी तात्पर्य लिख रहे हैं कि इटर्नल फॉर्म, भगवान का जो फॉर्म, उससे हमारा अटैचमेंट है और पर्टिकुलर मूड भी है, ये विरोधाभास लगता है। इसका अर्थ ये है, सीधा समझें कि जैसे चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों में दो ऐसे पार्षद थे जो राम के भक्त थे। उसको कितना भी कहो कृष्ण का, वो ने कह रहे हम प्राण दे सकते हैं, राम नहीं छोड़ सकते। ये है कि जिस भक्त का जैसा भाव है उसी भाव को भगवान रक्षा करते हैं, उसी में उनके साथ आते हैं, सामने आते हैं। ये इसका अर्थ ये हुआ। दूसरा जो है, मैं स्वरूप सिद्धि कर लूं कि मेरा भगवान के साथ सखा भाव है, तो भगवान मेरे को वो सखा ग्वाल बालू वाला सखे के रूप देंगे वहाँ स्पिरिचुअल, जिसमें मैं भगवान से वो रिलेशन में सेवा कर सकूं। अगर कोई वात्सल्य का है तो उसको वो एल्डरली गोपी का रूप देंगे, जिससे वो भगवान से वात्सल्य का व्यवहार कर सके। तो दैट इज व्हाट बोथ वेज, भगवान उस रूप में आ सकते हैं या भगवान को और भक्त को वो रूप देंगे जिससे वो भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ सके। ये दोनों तात्पर्य हैं चक्रवर्ती ने, दोनों ही इज टेकन बोथ। तो भगवान जैसे नरसिंह देव के उपासन के सामने नरसिंह देव के रूप में आएंगे। ये एक आपने सुना हो कि तुलसीदास जी वृंदावन में गए थे, भगवान को कहा कि भगवान आपकी छवि तो बड़ी अच्छी है, मुरली मनोहर लग रहे हो, लेकिन मेरा माथा तब झुकेगा जब धनुष बाण हाथ में लोगे। तो भगवान वही उसके सामने धनुष बाण हाथ में लेके प्रकट हो गए। तो ये है भगवान भक्त के अधीन हो जाते हैं, वो जिस रूप में उसको चाहता है उसमें प्रकट हो जाते हैं। ये उदाहरण ऐसे देते हैं कि वृंदावन में आके ऐसा उसको अनुभव हुआ था। ये बड़ी बहुत सुंदर छवि है, तुलसी मस्तक जब लियो धनुष बाण हाथ। तो ऐसे इसका मतलब इस भाव से भगवान भक्त के अपने भाव के अनुरूप ही रूप में प्रकट हो जाते हैं। कर्मियों के लिए काल के रूप में प्रकट हो जाते हैं, वो भी रूप है उनके लिए।
कालो अस्मि लोक शेखर प्रतो, वही भगवान का रूप है। वैसे कर्मी बुरे नहीं है भैया, कर्म कर लो। हरे कृष्णा। तो कोई साधना के समय पर्टिकुलर मूड को कल्टीवेट करना, इसका प्रैक्टिकल साधना के समय हमारे को भूत सिद्धि वाले मंत्र के ऊपर फोकस करना पड़े। गोपी भर्तव्य पद कमल योर दास दास अनुदास। मैंने ब्राह्मण नहीं हूँ, ब्रह्मचारी नहीं हूँ, सन्यासी नहीं हूँ, मैं गोपी भर्तव्य पद कमल योर दास दास अनुदास। क्या है कि हम गौड़िया वैष्णव है ना, हमारे अंदर सॉफ्टवेयर ही डाला हुआ है वो रागनों का भक्ति का, और प्राय जो है वो मंजरी भाव का ही सॉफ्टवेयर डाला हुआ है। इसलिए हमारा जो भाव ये होता है, कुछ भक्त है सखा भाव में है, कुछ भक्त वो सखा ही भाव में भगवान का पूजा करना चाहते हैं, उसी भाव में उनको अच्छा लगता है। तो हमारा स्वरूप है दास, ये दास भाव हमारा मुख्य है। दास चाहे राजा रानी भी सेवा करेगी, सेवा द सर्विस इज ए मेन इंग्रेडिएंट इन ऑल 5 रसा और 4 रसा, नॉट 5। शांत को छोड़ दीजिए, द रेस्ट 4 सर्विस इज ए मेन इंग्रेडिएंट। वो दास से लेके माधुर्य तक सर्विस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, और सर्विस के ऊपर ही सब कुछ डिपेंड करता है। जैसे मिठाई कोई भी हो तो चीनी जरूरी है, ऐसे भाव कोई भी हो लेकिन सर्विस मस्ट है। तो राजा रानी भी सर्विस करती है, यशोदा मैया भी सर्विस करती है, रक्तक भी सर्विस करता है, श्रीधामा भी सर्विस करता है, बट दे हैव ए सर्विस विद ए डिफरेंट मूड। सखा मूड सर्विस करते हैं, वात्सल्य मूड में सर्विस करते हैं। तो सर्विस हमारा स्वरूप है, ये स्वरूप हमको सिद्ध करना है। इसके बाद भागवत को सुनते सुनते some particular pastime click to your consciousness, ये बड़ा अच्छा लगता है, ये भक्त भगवान की कैसी सेवा कर रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। Then you develop a desire that I can serve similarly to the Supreme Lord. वो स्टेज आता है तब राग अनुगी साधन शुरू होता है। राग अनुगा साधन शुरू होने के लिए वो स्टेज चाहिए। राग अनुगा साधन शुरू करने से पहले हमारे 2 रिक्वायरमेंट हैं, एक तो लोलुप्यम हो और दूसरा अनर्थ निवृत्ति तक हम आप पहुंच चुके हों। देन वी कैन प्रैक्टिस दिस राग मार्ग भक्ति, नहीं तो सहज हो जाएगा। हरे कृष्ण। हाँ जी। sadhana stage, the sadhaka will be able to know his Ishtadeva, or in the raga bhakti only he is able to know. इष्टदेव वी नो फ्रॉम द बिगनिंग। हमारा जैसे हमने इष्ट है कभी इष्टदेव इष्ट, अब यहाँ इफ आई कैन टेल यू समथिंग सिंपल, एवरी डिवोटी मस्ट हैव हिज own personal presiding deity as is इष्टदेव। हर एक भक्त का अपना व्यक्तिगत एक ठाकुर जी का विग्रह इष्ट होना चाहिए और रोज उसी का ध्यान करना चाहिए। वही ठाकुर जी एक दिन आपके सामने उसी रूप में जिसमें आप ध्यान कर रहे हैं प्रकट हो जाएंगे। सो हर भक्त का, आप यहाँ रह रहे हैं, राधा रासप्यारी आपका इष्टदेव है, मानो कोई गौरनित्य का हो, कोई सीताराम का हो, जैसे आपका मन जाओ, लेकिन रोज उसका ध्यान करना आपका रोज का पहला धर्म है। आप कहीं भी हो दुनिया में, लेकिन यू मस्ट हैव योर ओन इष्टदेव फर्स्ट। इष्टदेव हमारा पहले होता है विग्रह, या पूजित स्वयं विग्रह हो या अपना ठाकुर जी मंदिर का विग्रह हो, उन दोनों में से एक। और वैसे एक दृष्टि से तो ये है कि शुरू में तो हम भगवान भगवान कहते हैं, वी डोंट नो व्हाट इज भगवान, हु इज भगवान, फिर सबको भगवान मानते हैं। लेकिन कृष्ण भावना में आने के बाद कम से कम विष्णु तत्व को भगवान मानते हैं, ये तो क्लियर है, ओनली विष्णु तत्व इज भगवान। उसके बाद हमारी इंक्लिनेशन कौन से भगवान के फॉर्म के प्रति है, ये हमारा अपने का व्यक्तिगत, एवरीबॉडी एज ए पर्सनल इंक्लिनेशन। बहुत से ऐसे भक्त हैं, मैं जानता हूँ कि
वो मध्व आचार्य मध्व संप्रदाय से प्रभावित है, तो उनका वो उड़पी गोपाल से उसी कृष्ण के गोपाल भाव से भावना है उनकी वही है। तो कुछ भक्त हैं जो लक्ष्मी नारायण की उपासना करने में रुचि रखते हैं, क्योंकि हमारी राधा कृष्ण की उपासना है, लेकिन पूजा अभी भी हमारे लक्ष्मी नारायण की ही पद्धति से होती है। The archa vigraha is according to the rules of the लक्ष्मी नारायण उपासना। तो यही इसके अंदर सब कुछ है, आप जिसी रूप में चाहो उसी में से ये प्रकट हो जाएगा। अब आपका कौन से के ऊपर मन टिकता है, वो अल्टीमेटली इन साधन भक्ति वी हैव टू डिसाइड। साधन भक्ति में हमारे को अर्चा विग्रह एक साधन भगने का अंग है। 5 अंग में 64 अंग में 2 बार अर्चा आया है। तो अर्चा विग्रह का उपासना हमारी साधन भक्ति का अंग है। तो साधन भक्ति के समय ही हमारे को विशेष अर्चा की उपासना का व्रत ले लेना चाहिए। ये साधन भक्ति का अंग है। भाई पंचांगों में है ना, श्रद्धाया श्री मूर्ति है सेवया, तो ये साधन भक्ति में ही करना है। डिफरेंस नहीं है हमारे लिए, गौर निताय की करें या राधा कृष्ण करें, दे आर सेम। ये दृष्टि हमको देखने में आए तब समझे उत्तम अधिकारी के ऊपर पहुंच गए। अब प्रभुपाद ने इतने सारे विग्रह स्थापित किए, अब उनका कौन सा स्वयं का कौन सा था, कौन सा इष्ट है उनका, क्या कहोगे? सब में एक ही देखते हैं, उनको तो एक ही दिख रहा है सब में। जैसे अलग होते हुए भी एक है। ये उत्तम अधिकारी की दृष्टि कौन है? वो डीटी को डीटी नहीं समझता है, डीटी को साक्षात भगवान समझता है। एंड भगवान कैन मैनिफेस्ट इन एनी फॉर्म। ये आज का श्लोक था। देखिए क्या होता है आपका। चलिए, हरे कृष्ण। प्रभु जी, आपने भागवतम क्लास में बोला था कि जीव श्रीमती राधा रानी, मेरा नहीं अंश, मेरा तो नहीं बोला था ना। बट एक प्रश्न था कि जीव सच्चिदानंद है, माइन्यूट सच्चिदानंद जीव है, तो प्रभुपाद जी कभी लिखते हैं कि लाइक जीव सर्वेंट एंजॉयर, लाइक जीव इज अ सर्वेंट इन गॉड, सर्विट्यूड गॉड, सर्विट्यूड गॉड। सो आप, मैंने कहा था आपके पास भागवतम है 2:10:3, किसको मैंने कल दिखाया था? 2:10:3 का पर्पट, 2 2nd कैंटो 3rd चैप्टर 10th 2:10:3 उसके पर्पट के 2nd पैराग्राफ के लास्ट की 4 लाइनें पढ़िए। 2nd पैराग्राफ में लास्ट 4 लाइनें। And as explained here before, the illusory conclusion is that creation is made by the inert material nature. The Vedic conclusion is transcendental light, whereas the non-Vedic conclusion is material darkness. The internal potency of the Supreme Lord is identical with the Supreme Lord, and external potency is enlivened in contact with the internal potency. The part and parcels of the internal potency which react in contact with the external potency are called marginal potency or the living entities. आ रहा है कुछ समझ में? अब थोड़ा इसको थोड़ा अच्छी तरह से चरण करो। आपने पढ़ा कल, समझ में आया कुछ? ये सीधा लिखा पड़ा है, इंटरनल पोटेंसी का पार्ट एंड पार्सल है जो मटेरियल एनर्जी से इन्फ्लुएंस होता है, उसको मार्जिनल एनर्जी कहते हैं। लिखा है कि नहीं? The part and parcels of the internal potency. हाँ, इंटरनल पोटेंसी है, मेरा नहीं है, मैं वही कह रहा ना। Which react in contact with the external potency. ठीक है, are called marginal potency. अब बताओ मार्जिनल पोटेंसी क्या है? मार्जिनल पोटेंसी इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ इंटरनल पोटेंसी। ऐसे ही पढ़ोगे कि नहीं? हाँ, वो कम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द एक्सटर्नल पोटेंसी, ऐसे ही पढ़ेंगे ना। तो ये प्रभुपाद का पर पढ़े, मैं क्या करूं? नहीं,
part and parcel of the internal potency is called marginal potency, which come under the influence of the external potency. ऐसे ही लिखा है। और भी जगहों पे मैंने पढ़ा है, अभी मेरे को इस वक्त 4th कैंटो में भी एक जगह पे है, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली इस वक्त। भाई जीव शक्ति तो है ना, जीव शक्ति है ना, शक्तिमान तो नहीं है। एनर्जी है, परा पोटेंसी है, परा एनर्जी है, परा और परा दो ही शक्तियां ही है ना। तो सारी जब छाया का रूप में एक्सटर्नल एनर्जी है, तो पार्ट एंड पार्सल भी उसकी एनर्जी का भी हो सकता है पार्ट। इसमें कृष्ण के पार्ट एंड पार्सल है थ्रू इंटरनल पोटेंसी, कोई आपत्ति तो नहीं। अरे भाई मैं सच्चिदानंद आपसे पूछता हूँ, ये सच्चिदानंद है क्या? सैंदनी शक्ति, संवित शक्ति और अलादीन शक्ति, इसी को सच्चिदानंद कहते हैं। ये तो शक्ति ही है ना, ये भी सही। सच्चिदानंद शक्ति तो है ना भाई, सच्चिदानंद भगवान की शक्ति है, तो जीव भी भगवान की शक्ति है, उसमें भी थोड़ा सच्चिदानंद है, इसमें क्या है? भक्त को बोलो प्रसाद खाओ 4 बजे, फिर बात करेंगे।